Good evening to all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, so in the morning, I was discussing with you about that updated return. Okay. So what is updated return? Let us recap once and then we'll go ahead. You see, suppose I told you, suppose this is the previous year, say 2021, 22, 23. Suppose this is the previous year. Okay. उसका corresponding assessment year कौन सा होगा 2023-24. So suppose this is the corresponding assessment year. Now in this corresponding assessment year, see, you have to file your income tax return. See, it depends on the type of the assessee. Okay, suppose assessee is a company or it is required to get its books of account audited, or assessee is a partner of the partnership firm whose books of accounts is get audited. For him, the due date of filing of return is 31st October, okay, of the assessment year, so that is 2023. Okay, or suppose assessee is a company who is doing international transaction in which the transfer pricing is applicable, then the due date of filing of return is 30th November. And suppose if the assessee is not falling in this or this category, then for him the due date of filing of return is 31st July. So these are the various due dates available for various assessees for filing of income tax return. Okay, now suppose after filing of return, ये तीनों रिटर्न सपोज आपने फाइल कर दिए ऑन टाइम, एंड आफ्टर दैट इफ यू रियलाइज दैट कि देयर इज अ मिस्टेक इज मेड बाय यू, आपको खुद पता चलता है, तो तब जो रिटर्न फाइल करते हो दैट इज नोन एज, इसको आप रिवाइज कर सकते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड रिवाइज रिटर्न. ठीक है. फिर अगर आपने ये टाइम लिमिट आपकी जो भी दी गई है, तो लिमिट के अंदर अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो आपको मैंने बताया कि देखो सपोज इफ योर प्रीवियस ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 2024, इसके 3 महीने पहले तक आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो आफ्टर पेइंग सर्टेन पेनल्टीज. तो दैट इज 31st December. इससे 3 महीने पहले 3 months prior to this, मतलब on or before 31st December 2023, you can file your income tax return. So that return, but the return which is filed after the due date, okay, but before the completion of assessment year or before the 3 months prior to the date of completion of assessment, if the return is filed, then that is known as B-dated रिटर्न. ओके, अगर आपने इसमें से कोई भी रिटर्न फाइल कर दिया है, ओके, और ये रिटर्न फाइल करते किया है लेकिन आपने टैक्स नहीं भरा है, रिटर्न इज फाइल ऑन टाइम or after the due date, but the tax is not paid, and if you receive the notice from the income tax department for payment of the tax and make the return valid, तो रिटर्न फाइल किया लेकिन टैक्स भरना बाकी है, तो ऐसे रिटर्न को हम कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न. ओके, देखो ये कोई भी रिटर्न फाइल करते हो और सपोज ये ड्यू डेट से पहले आप रिटर्न फाइल करते हो, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. जो नॉर्मली ये हमारा नॉर्मल रिटर्न है. अगर इसको आपने लेट फाइल किया तो दैट इज नोन एज डिलेटेड रिटर्न. इसको फाइल करने के बाद रिवाइज किया तो उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न. और अगर फाइल करने किया है लेकिन आपने टैक्स नहीं पे किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि विद इन 15 days यू पे द टैक्स एंड यू, तो वो जब नोटिस आती है तो आपका फाइल किया हुआ रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है. बाय पेइंग द टैक्स यू कैन मेक दैट रिटर्न गुड. तो जब नोटिस आती है देन योर रिटर्न इज बिकम डिफेक्टिव रिटर्न. और यही कोई रिटर्न में अगर आपने लॉस डिक्लेयर किया और टाइम से पहले फाइल किया है तो दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ लॉस. रिटर्न ऑफ लॉस. Okay, so these are the various kinds of return that we can file under the income tax act. Now see, suppose कोई भी रिटर्न फाइल करोगे आप, इसमें से कोई भी टाइप, तो सब में अब आपकी इनकम
डिस्क्लोज करते हो, आपका लॉस डिस्क्लोज करते हो, और वो डिस्क्लोज करने के बाद और ये आपकी ये ड्यू डेट चले जाने के बाद इफ यू वांट टू अपडेट योर रिटर्न, कैन यू अपडेट? तो आंसर इज यस, यू कैन अपडेट योर रिटर्न। तो वो आपको कब तक वेट करना पड़ेगा? यू हैव टू एंड अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, एंड विद इन 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ your original return, you can file updated return. So that is known as updated return. So updated return is filed after the within 24 months from the end of the relevant assessment year. तो relevant assessment year के end होने के 24 months में, मतलब 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये अपडेटेड रिटर्न में आप क्या बता सकते हो? अगर आप यहाँ कुछ करना भूल गए हो, तो सपोज इफ यू वांट टू अपडेट योर इनकम and you want to pay more tax, you can update. But suppose if you want to update a loss, તમે loss છે કે ભાઈ अपडेट करके ज़्यादा लॉस दिखाना चाहते हो जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, इट इज़ नॉट अलाउड टू बी अपडेटेड. Suppose if you want to update in that way that you have already paid the tax and for that your refund, more refund become due. ઓકે, પાછો ગવર્મેન્ટ પાસેથી ટેક્સ લેવાનો થાય, આવું કંઈક કરવા માટે અપડેટ કરવા માંગતા હોય તો નો. બટ સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પે ધ ટેક્સ और टैक्स लायबिलिटी, टैक्स वापस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, लेकिन टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऐसा करने के लिए आप आपका रिटर्न अपडेट कर सकते हो. सपोज आपने रिटर्न यहाँ तक फाइल ही नहीं किया और आप आपकी इनकम दिखाना गवर्नमेंट को जाते हो, लॉस दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी इनकम दिखाने के लिए आपको टैक्स भरना है, वो सब चीज़ों के लिए आप आपका रिटर्न अपडेट कर सकते हो. अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अपडेटेड रिफंड फाइल करके आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होती, लेकिन अगर आपको टैक्स भरना है रिटर्न फाइल करके, देन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल. ओके, नाउ सी इन माय लास्ट, मतलब दिस इज कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न. कि रिटर्न फाइल आपका असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका रिटर्न फाइल करना रह गया है और उसके बाद फाइल करके आप टैक्स भरना चाहते हो, और इफ यू वांट टू अपडेट सम इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच योर टैक्स लायबिलिटी इज नॉट गेट अफेक्टेड, और if it is affected that positively that you have to pay more tax. But suppose if you have to claim the refund or if you have to increase the loss, you cannot update your return for these purposes. Okay. Now what I was discussing with you in the morning, एक अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो, ओके, तो अपडेटेड रिटर्न में टैक्स अगर भरने का आएगा तो कैसे आएगा? तो आई थिंक आई हैव डिस्कस विथ यू up to this point. Okay, time limit per time limit for filing the updated return. Can you see the screen? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Yes, sir. So at the time you can update your return. देखो कब तक अपडेट कर सकते हो? You can update your return any time within 24 months from the end of relevant assessment year. तो सपोज मेरा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024 को एंड होता है, तो उसके 24 मंथ्स तक मैं रिटर्न अपडेट कर सकता हूँ. अभी देखो रिटर्न अपडेट करने के बाद मेरे को करना तो पॉजिटिव ही है कि आई हैव टू पे द टैक्स. ओके, या तो फिर मैंने अब तक कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की है, गवर्नमेंट को बताया नहीं और मेरे को इनकम डिक्लेयर करनी है, मतलब उस पर 2,50,000 से कम है, टैक्स नहीं आता है, यू कैन अपडेट तरीके. लेकिन अपडेट करके आपको रिफंड चाहिए, वो नहीं पॉसिबल. ठीक है, तो अगर अपडेट करके अगर आपको टैक्स भरना है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि आपने इसमें से कोई एक रिटर्न फाइल किया है और यू वांट टू अपडेट योर रिटर्न, या तो फिर आपने इसमें से कुछ फाइल नहीं किया है और मतलब यू हैव नॉट शोन द इनकम एंड बाय अपडेटिंग रिटर्न you are showing to the government that this is my income, I was forget to file my return and I am updating my income. તો वो કેસ में भी मतलब તમે ઓરિજિનલ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હશે તો પણ અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો, ઓરિજિનલ રિટર્ન ના ફાઇલ કર્યું હોય તો પણ તમે અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस विथ यू. देखो यहाँ अपडेटेड रिटर्न के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की, ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं. देखो देखो क्या लिखा है, हु कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न, that any person whether or not he has furnished the return under section 139 1 4 और 5, मतलब उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर फाइल्ड और नॉट. यहाँ पे लिखा है फॉर असेसमेंट ईयर में फर्निश द अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम
और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब वो रिटर्न फाइल कर सकता है, ओके, ओरिजिनल नहीं भी फाइल किया तो। ओके, अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है हमारा कि टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। सपोज इफ यू आर अपडेटिंग योर रिटर्न हियर, तो उस पर अगर टैक्स आएगा तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्या क्या चीजें ध्यान में ली जाएगी। तो ये पॉइंट है कि देखो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं किया, वेयर नो इनकम अंडर सेक्शन 139, नो रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4। 1 मतलब स्टैट्यूटरी वाला, 4 मतलब बी रिलेटेड वाला, दोनों में से एक भी रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया, ओके, where no return of income has been furnished by the assessee and tax is payable, okay, on the basis of updated return to be and the tax is payable on the basis of updated return to be furnished by such assessee after taking into account, मतलब अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है भरने की, उसने यहाँ तक टैक्स ही नहीं भरा है, फाइल करके टैक्स भरने का आता है, तो ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज में ध्यान में ली जाएगी। क्योंकि देखो उसने अगर कोई एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे कर दिया, सपोज इसका एडवांस प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर अगर उसने एडवांस टैक्स पे किया है, उसने टीडीएस पे किया है, टीसीएस पे किया है, तो ये सभी चीजें ध्यान में ली जाएगी वैल्यू और फाइलिंग। सपोज यहाँ पे अपने एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस करके 20,000 भरा है, अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, उसके अंदर आप इनकम दिखाते हो और उस पर टैक्स आता है 25,000, तो 20,000 तो आपने ऑलरेडी उस टाइम पे कर दिया है, तो यू हैव टू पे ओनली 5,000। इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस डिडक्शंस। ये आपने ऑलरेडी भरा है तो वो आपको सेट ऑफ मिलेगा उसका कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भर दिया है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम पे आपका जो भी टीडीएस टीसीएस, देखो अगर आपने इफ यू हैव पेड एनी एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस, इवन यू कैन गेट द रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ओके, टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो आपका जो अगर एरियर की इनकम आती है तो 89 की रिलीफ मिलती है, तो रिलीफ मिलेगी, रिलीफ 1991 में जो रिलीफ मिलती है, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। सपोज आपने कोई टैक्स आउटसाइड इंडिया में भर दिया है कोई इनकम पे, तो इंडिया के अंदर उस पर वापिस टैक्स नहीं भरना होता और आपको रिलीफ मिलती है अंडर सेक्शन 90 एंड 91। और सपोज आपको कोई पिछले साल की इनकम ये साल में मिली है, उसकी वजह से आपका टैक्स स्लैब चेंज हो गया है, सपोज मैं नॉर्मली 20% के स्लैब में आता हूँ, लेकिन ये साल क्या हुआ, मुझे 2 साल पहले की सैलरी का एरियर इस बार मिला, तो मेरी इनकम बढ़ गई, अभी वो 20% से मैं 30% के स्लैब में आ गया, तो वो केस में मुझे सेक्शन 89 की रिलीफ मिलती है। और सपोज कोई इनकम ऐसी मैंने फॉरेन में कमाई तो फॉरेन में भी टैक्स पे किया, नाउ दैट इनकम आई ब्रॉट इनटू इंडिया एंड माय रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ रेसिडेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है इस पे भी टैक्स भरना है, तो आपको टैक्स तो भरना है, लेकिन आपने ऑलरेडी टैक्स फॉरेन कंट्री में पे किया है, तो आपको सेक्शन 90 और 91 में रिलीफ मिलती है। तो ऐसी तो रिलीफ मिलती है, भले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, लेकिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे किया है, प्रीवियस ईयर में आपने टीडीएस टीसीएस पे किया है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको सुबह में बताया था कि अगर कुछ कंपनीज होती है तो वो प्रॉफिट करे या लॉस करे, हर एक कंपनी को अंडर सेक्शन 115 डबल जे ए, सॉरी देखो टैक्स क्रेडिट और 115 जेडी, उसको मैट की क्रेडिट, मतलब मैट का टैक्स मिनिमम हर साल भरना पड़ता है। ठीक, तो શરૂઆતમાં લોસ હોય ને તો પણ એને ટેક્સ થોડો 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 ભરતો રહેવાનો, જ્યારે પ્રોફિટ થાય ને એટલે લોસમાં ટેક્સ જે ભર્યો ને प्रॉफिट वखत ये टैक्स એની સામે એડજસ્ટ થાય, तो दैट इज कॉल्ड मैट क्रेडिट। ओके, तो वो आप एमकॉम फाइनल में मैट के प्रोविजन पढ़ोगे। अभी तो इतना याद रखो कि भाई कंपनी होती है वो प्रॉफिट करे या लॉस करे, कुछ कंपनीज को कुछ डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट। तो अगर मैट का टैक्स अगर उसने पे किया है 115 जेडी में, और ये 115 जे ए डबल ए और जी 115 जेडी, ये सब मिनिमम टैक्स के प्रोविजन है। अगर उसने कोई टैक्स पे किया और उसकी क्रेडिट क्लेम करनी है तो वो क्रेडिट भी आपको मिलेगी। देखो तो ये सब भी कंसीडर किया जाएगा। तो एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 115 जे डबल ए और 115 जेडी, assessee shall be liable to pay such tax together with the interest fee payable for the delay in furnishing the return or default in payment of advance tax along with the additional income tax or before
furnishing the return of income and return shall be accompanied by the proof of payment of tax or additional income tax। मतलब देखो जब भी आप ये रिटर्न फाइल करोगे तो इसके अंदर आपका ये टीडीएस टीसीएस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको सेक्शन 90, 89 और 91 की रिलीफ भी आपको मिलेगी। अगर आपने मैट का टैक्स अंडर 115 जे भी पे किया है और उसकी क्रेडिट जो 115 जे ए और जे डी वो सेक्शंस के अंदर मैट की क्रेडिट मिलती है, वो क्रेडिट भी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन जब भी आप ये रिटर्न फाइल करते हो तो आप देखो, आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। ओरिजिनली आपको कब फाइल करना था, यहाँ पे, और इसकी जगह आप यहाँ पे ही फाइल कर रहे हो। तो ये लेट फाइल करते हो तो उसकी पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ये जो डिलेड पीरियड है उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ शॉर्ट पेमेंट किया है या तो फिर कम एडवांस टैक्स किया है तो उसका इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये सब ऐड करके, ये सब लेस करके आपका ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा व्हेन यू फाइल दी अपडेटेड रिटर्न। समझ में आया आपको? हेलो, यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके। अभी देखो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि असेसियस फर्निश द रिटर्न अर्लियर। मतलब असेसी ने या तो ये तारीख को या ये तारीख को या ये तारीख को अपना रिटर्न फाइल कर दिया और उस पर टैक्स भी भर दिया। उसके बाद उसको लगता है अरे यार भूल થઈ ગઈ, ઓછો ટેક્સ ભરાઈ ગયો, કે ઓછી ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝ કરી, પણ તમારું અસેસમેન્ટ થવાનું બાકી છે, then you want to pay more tax and if you want to update your return, तो वो केस में आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस वो सब तो कंसीडर किया जाएगा। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर में सपोज कोई टैक्स आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं जिसको, ये टैक्स यहाँ पे अगर आपने कोई पे किया है तो वो टैक्स भी कंसीडर किया जाएगा। પેલામાં કેમ નહીં, અહીંયા તમે રિટર્ન જ નતું ફાઇલ કર્યું, અહીંયા તો તમે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે ને પછી પાછું એને અપડેટ કરો છો, તો અહીંયા તમે કોઈ ટેક્સ ભર્યો હશે તો that tax will be also considered while calculating this tax। वो सेक्शन 40 140 वाला टैक्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, तो वो देखिए आप, देखो वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) मतलब स्टैट्यूटरी रिटर्न, 4 और 5, 4 मतलब रिलेटेड और रिवाइज रिटर्न, 5 मतलब हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी एंड टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। और फिर देखो आपने यहाँ पे ये रिटर्न फाइल करके टैक्स भी पे कर दिया है, अभी आपको यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स भरने की बारी आई तो क्या किया जाएगा? is to be furnished by the assessee, then after taking into account following things, देखो amount of relief or tax referred under section 40A, credit of which has been taken earlier return। मतलब देखो यहाँ पे जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको सेट मिल जाएगा। यहाँ पे सपोज समझी लो कि અહીંયા તમે 15,000 टैक्स ભર્યો છે અને હવે અહીંયા તમે અપડેટ કરો તો 20 ભરવાનો આવે, તો આ 15 તો તમારે સેટ કરી જ દેવાનો, કારણ કે તમે જે તે ટાઈમ પર ભરો તો વધારાના 5 ભરવાના થાય તો એ ભરી દેવા। ओके, तो ये ध्याનમાં લેવાનું। ये देन टीडीएस टीसीएस तो ऑब्वियसली आपने टीडीएस टीसीएस टेकन इनटू अकाउंट। रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 91, 90A की रिलीफ आपको ध्यान में लेनी है, ठीक है। और ये 115 जेडी और जेए का जो आपको मिलता है वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऊपर वाले पॉइंट ही पूरे रिपीट होते हैं, सिर्फ ये एक पॉइंट नया आया कि आपने बाकी सब सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे टैक्स पे किया है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, बाकी के सभी पॉइंट सेम है। ओके, इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी इश्यूड, देखो एक चीज है तो देखो बी एज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड if any issued in respect of earlier return and the assessee shall be liable to pay such tax together with the interest or default or delay in payment of advance tax along with the additional income tax as reduced by the amount of interest paid earlier before furnishing the return shall be accompanied by the proof। मतलब देखो as increased by the amount of refund if any issued। okay, in respect of such earlier return, the assessee shall be liable to pay such tax with the interest। ओके, सपोज समझ लो कि आपसे क्या हुआ है कि आपने यहाँ पे कोई रिटर्न फाइल कर दिया और यहाँ पे आपको रिफंड ज़्यादा मिला, तो आपको लगता है कि आ वखत વધારે रिफंड મળી ગયું છે, મને ખરેખર આ રિફંડ માટે હું લાયબલ નતો પણ મને વધારે મળ્યું, તો તમે ગવર્મેન્ટને બતાવવા માંગો કે મને વધારાના પૈસા તમને મળી ગયા and I want to repay back। ओके,
તો ગવર્મેન્ટે તમને વધારાના પૈસા રિફંડ આપી દીધા. સમજી લો કે મેં અહીંયા આગળ 20,000 ટેક્સ ભર્યો હતો, બરાબર, અહીંયા 20, હવે મારી લાયાબિલિટી અહીંયા આવી 10,000, તો મને ગવર્મેન્ટે 10,000 રિફંડ આપવા પડે. 20,000 મેં પ્રીવિયસ યરમાં ભરી દીધો હતો, મારી એકચ્યુઅલ ટેક્સ આવ્યો 10,000, તો 10,000 ગવર્મેન્ટે મને રિફંડ આપવો જોઈએ. એમ કે ગવર્મેન્ટે મને 12,000 રિફંડ આપ્યો. So I want to update my return and want to say that you have given me a excess refund. तो ये excess refund भी जब आप ये अपडेट करके रिफंड कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी लगता है, वो पेनल्टी इंटरेस्ट वो सब देखने के साथ ही आपको ये पे करना है, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है. ठीक है, तो ये हमने अपडेटेड रिटर्न किसको कहते हैं वो हमने ये पूरे पॉइंट में समझा. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now the next point of discussion is सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर. देखो अभी पहले क्या था, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, देखो हमारे बड़ौदा में भी इनकम टैक्स की ऑफिस है. ठीक है, तो हर एक वार्ड होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग वार्ड होते हैं, और वो वार्ड के असेसिंग ऑफिसर और ज्वाइंट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, और वो लोग आपका रिफंड असेस करते हैं. अभी क्या होता है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न इज गेट फाइल्ड ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन फाइल होके एक ही सर्वर पे जाता है. बैंगलोर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बना है, सीपीसी. ओके, वो सेंट्रलाइज सेंटर पे ही सबके रिटर्न इकट्ठा होके वहां चले जाते हैं, एंड देन आफ्टर दे डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम देयर કે તમારું રિટર્ન સપોઝ હું બરોડાનું રિટર્ન મેં મોકલી ગઈ જશે બેંગ્લોર, હવે એને અસેસ કરવા માટે કઈ મોકલશે, પાછું બરોડા નહીં આવે, બરોડાની ઓફિસમાં નહીં આવે, ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ ઓફિસર પાસે રિટર્ન અસેસ કરવા માટે જાય. એટલે પેલો મને ઓળખતો ના હોય, સપોઝ બરોડાનું એનું રોજ દર વખત એક જ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને મળતો હોઉં, તો મારા એની જો સંબંધ સારા થઈ ગયા હોય, હું એની જો સેટિંગ કરી લઉં. એટલા માટે આ લોકોએ શું કર્યું છે, સેન્ટ્રલાઇઝ પ્રોસેસિંગ યુનિટ બનાવી દીધું. બધા રિટર્ન પહેલા ત્યાં ભેગા થાય, ને પછી બધા અસેસિંગ ઓફિસરને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા જેની પાસે જે આવ્યું એ પ્રમાણે મોકલવામાં આવે. ઓકે, so this is the role of the central processing unit. Why in one line it is mentioned that what is centralized processing center. So see, centralized processing center has been set up at Bangalore for processing of all e-filed income tax return as well as paper returns filed in the state of Karnataka. Karnataka એ સપોઝ સમજી લો કે કદાચ ત્યાં આગળ હજુ પણ કોઈ કારણોસર હજુ પેપરમાં मतलब ફિઝિકલ રિટર્ન જતા હશે, કદાચ ત્યાં કમ્પ્યુટરાઇઝ ફેસિલિટી એટલી નહીં હોય, તો ત્યાં પેપર રિટર્ન એક્સેપ્ટ કરતા હશે ફિઝિકલી ભરેલા. તો એ બધા રિટર્ન પણ અને જે ઓનલાઈન ફાઇલ થાય છે, બધા જ રિટર્નનું પ્રોસેસિંગ માટે એક જ જગ્યા બનાવી છે ગવર્મેન્ટે, દેટ इज अ सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर. तो वो वहाँ एक ही जगह पे नहीं करते, पूरे इंडिया में जो जो ऑफिसर रहते हैं वो अपने ऑफिस में से ही बैठ के उसको असेस करते हैं, लेकिन वो असेस करके फिर सबमिट कहाँ कर देते हैं, वापस वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट पे ही जाते हैं, और वहाँ से असेसी को उसका ऑर्डर जाता है कि તમારું રિટર્ન પ્રોસેસ થઈ ગયું છે, કે તમારા રિટર્ન પર આટલી ડિફેક્ટ છે, યુ હાવ ટુ પે ધીસ ટેક્સ. वो कहाँ से होता है, दैट प्रोसेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम दी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इनकम टैक्स रिटर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्लिगेशन टू फर्निश द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग. देखो ये जो कंपनीज है और ये जो लोग हैं, दैट इज अ बैंकिंग कंपनी, या तो फिर ट्रस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी और इंस्टीट्यूशन इश्यूइंग द बॉन्ड, कंपनी इश्यूइंग द शेयर, रजिस्टर और सब रजिस्टर अपॉइंटेड अंडर दैट, और आरबीआई, ये लोगों को क्या करना पड़ता है, इन लोगों को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है. वो लोग क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बंधे हुए हैं, सेक्शन 285 क्या कहता है, STFR मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग. STFR shall be furnished by every person specified in respect of all the transaction and nature and value specified in form number 61A on or before 31st May of the following financial year. मतलब ये सभी लोग हैं, देखो ये लोग स्पेसिफाइड पर्सन, ये लोगों को एक फॉर्म 61 में हर एक साल 31 मई को ये इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं. इसके बेस पे गवर्नमेंट को पता, डिपार्टमेंट को पता चलता है किसने क्या ट्रांजेक्शन किया. देखो कोई भी बैंक होती है, बैंकिंग कंपनी,
उसको 31 मई से पहले ये फॉर्म नंबर 61A में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या इंफॉर्मेशन देनी है? कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग ₹10 lakhs or more in a year in any saving account of a person maintained in that bank. એટલે કોઈ પણ બેંક હોય એની અંદર કોઈના પણ બેંક અકાઉન્ટની અંદર આખા વર્ષમાં 10 લાખથી વધારે કેશ જમા થાય છે તો એ વ્યક્તિનું નામ, એનો પેન નંબર, આ ફોર્મ નંબર 60 અને એને કેટલું અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરાવ્યું છે કેશમાં, that information this banking company will send to the income tax department in form number 61A. Okay, तो ये फॉर्म नंबर 61A में ये बैंक को एवरी ईयर ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। सेम वे देखो, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है और एनी अदर इंस्टीट्यूशन इश्यूइंग द क्रेडिट कार्ड, तो बैंक या तो फिर दूसरा कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है, ओके, और तो उसको ये इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन फॉर्म 61A में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है? पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द बिल रेज in respect of the credit card issued to that person aggregating ₹2 lakh or more in a year. मतलब તમે એક આખા વર્ષની અંદર સપોઝ ક્રેડિટ કાર્ડથી પરચેસ કરીને એના જે બિલ તમે રીપે કરો છો અને એનું અમાઉન્ટ ઇટ ઇઝ એક્સીડ ₹2 lakh, देन आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे देगा। सॉरी, ये बैंकिंग कंपनी और क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61 में इंफॉर्मेशन एवरी ईयर 31 मई से पहले सबमिट करेगी। એટલે ઇન્કમ ટેક્સને ખબર પડશે કે તમે ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરો છો ને એમાં 2 લાખ રૂપિયાનું શોપિંગ કરો છો, તમારી ઇન્કમ આના કરતાં વધારે છે, તમે રિટર્ન નહીં ફાઇલ કર્યું તો તમને નોટિસ આવશે। अभी ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती कंपनी है, उसका जो मेन ऑफिसर होता है उसको ट्रस्टी कहा जाए। तो ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड जो होता है, ओके, द रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अमाउंटिंग ₹2 lakh और मोर इन एक्वायरिंग द यूनिट्स ऑफ फंड। जब कोई पण म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट देता है। जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर्स मिलते हैं, डिबेंचर मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी फॉर्म 61A में 31 मई से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए SFTR सिस्टम के अंतर्गत इसको देना पड़ता है। ठीक है, अगर देखो कोई भी कंपनी और इंस्टीट्यूशन इश्यूइंग द बॉन्ड और डिबेंचर, कोई भी कंपनी है या तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन बॉन्ड और डिबेंचर इश्यू करती है और उसने बॉन्ड इश्यू किया और किसी ने बाय करके आपको 5 लाख और उससे ज़्यादा, देखो, रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अमाउंट ऑफ ₹5 lakh और मोर फॉर एक्वायरिंग द बॉन्ड्स और डिबेंचर इश्यूड बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर 5 लाख से ज़्यादा के कोई बॉन्ड आप बाय करेंगे तो कंपनी को ये SFTR के अंतर्गत मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई इसने 5 लाख से ज़्यादा के बॉन्ड या डिबेंचर बाय किए। अगर कोई कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं या तो फिर if the company is issuing the shares to the public issue or right issue, तो अगर कोई भी कंपनी ने है उसने पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के थ्रू शेयर्स इश्यू किए हैं और कोई भी पर्सन से 1 लाख या तो फिर कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलता है फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी STFR के थ्रू इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को देनी पड़ती, सॉरी, शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। देखो, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन है। ये सब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की कौन होता है? जो अपना ये सिटी सर्वे की ऑफिस होती है, ये रजिस्टर अपना दस्तावेज जो બધા રજીસ્ટર કરતા હોય ને એ લોકો પાસે સેલ પરચેજના રजिस्ट्रेशन था इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो अगर कोई भी पर्सन परचेज और सेल करता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का વેલ્યુ ₹30 લાખ ઓર મોર, તો એની ઓફિસમાં 30 લાખથી વધારે અમાઉન્ટનો કોઈ પણ દસ્તાવેજ થયો તો એનો પાન નંબર આ ફોર્મ 61A માં ભરીને આ જે રજિસ્ટ્રાર જે सब रजिस्ट्रार थे ही विल सबमिट टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका ये सेल परचेज की इंफॉर्मेशन वो दे ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पर्सन बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द RBI और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय RBI, देखो RBI का ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दी है, तो रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन an amount or amounts aggregating ₹5 lakh or more in a year for bond issued by RBI। RBI जो बॉन्ड्स इश्यू करती है टाइम टू टाइम, वो बॉन्ड किसी ने 5 लाख या उससे ज़्यादा का बाई किया है
आरबीआई या तो फिर आरबीआई का ऑथोराइज पर्सन है, ऑफिसर है, he will file the form STFR, okay, SFTR, to the income tax department and they will submit the form 61A। तो ये लोग बंधे हुए हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। देखो यहाँ पे यूनिट 3 का हमारा, मैंने यहाँ पे आपके मटेरियल में लिखवाया था कि यूनिट 3 का जो रिटर्न वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है, ये जो सॉरी यूनिट 4 का, और यहाँ से जो दूसरे पॉइंट जो नीचे है ये हमारा यूनिट 3 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो नीचे के पॉइंट है यहाँ से ये हमारे यूनिट 3 के। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, द मटेरियल इज इन योर हैंड, हियर यू राइट डाउन यूनिट 3, और ये चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। ओके, तो एडवांस टैक्स, so we are starting with that point, advance tax. So we just discuss the advance tax. I'll give you a brief idea. I have already discussed with you many times in your class that what is advance tax. Okay, तो advance tax क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया, छोटा सा पॉइंट है। ओके, तो what is the advance tax? गवर्नमेंट आपको एक टाइप की क्रेडिट ही देती है छोटे लोगों को कि भाई अब प्रीवियस ईयर है, सपोज दिस इज द प्रीवियस ईयर 2022-23, तो ये प्रीवियस ईयर में आप क्या करो, तो सिर्फ अर्न करो और इस पर जो अर्न किया उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर 2023-24 में यहाँ पे आप टैक्स भरो। तो ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, लेकिन देखो आप ये पूरा साल अर्न करते जाओगे और फिर आप यहाँ पे आपको आपकी इनकम पता चलेगी कि આ વર્ષમાં હું આટલું કમાયો અને એના પર પછી તમે ટેક્સ પાછો અહીંયા જુલાઈ ઓગસ્ટમાં ભરો તમે, तो ત્યાં સુધી गवर्नमेंट ने ना पैसा है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारी गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही अ टैक्स। तो तब तक गवर्नमेंट कैन नॉट वेट इट, सो गवर्नमेंट को अपना टैक्स टाइम पे मिल जाए, यही प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसको अपना टैक्स मिल जाए। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया, देखो ये 3-4 टाइप के प्रोविजन, इसका टैक्स अपने प्रीवियस ईयर में ही आपसे कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए टीडीएस के। ओके, टीडीएस के प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू नो दैट व्हाट इज टीडीएस, कि जो भी पेमेंट करता है वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट दे। सपोज आई एम अर्निंग द इनकम फ्रॉम सैलरी, सो आई एम अर्निंग, तो सैलरी मुझे मिलती है, तो ये सैलरी में से मेरा एम्प्लॉयर मुझे, तो यहाँ आई विल अर्न द सैलरी फ्रॉम माई सैलरी, माई एम्प्लॉयर डिडक्ट द टीडीएस एंड इट विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये इनकम पे टैक्स 6 ही साल पे मिल जाएगा, तो ये टीडीएस है। टीसीएस, ओके, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी इसके जैसा है कि सपोज आप कोई चीज़ बेचते हो किसी को, जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं, जैसे कुछ गोल्ड, तेंदू लीव्स, तो ऐसी चीज़ें आप किसी को बेचते हो, तो लाइक बीइंग अ ज्वेलर और दैट डीलर ऑफ द तेंदू लीव्स, आपको क्या करना है कि आपको वो लाइक सपोज 1 લાખનું સોનું છે, તો 1 લાખના સોના પર સપોઝ 0.1% ટીસીએસ લાગે, તો એ ટીસીએસ તમે આના પર ચાર્જ કરી દેશો। પછી શું કરશે, તો કે આ પૈસા તો કે મારા સોનાના બદલામાં મળ્યા, આ પૈસા तो कि हम गवर्नमेंट ने आपको, तो गवर्नमेंट ने यही टाइम पे टैक्स मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टीसीएस। फिर ऐसा ही एक पॉइंट है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप यहाँ जैसे जैसे अर्न करते जाते हो, तो यहाँ पे ही आपकी इनकम पे थोड़ा 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 टैक्स भरते जाओ, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। तो आपने टीडीएस के फॉर्म में टैक्स भरा, आपने टीसीएस के फॉर्म में टैक्स पे कराया, आपने एडवांस टैक्स के फॉर्म में टैक्स पे किया, और सपोज ये सब करके आपने पूरे साल में 25,000 टैक्स भर दिए। फिर आपकी एक्चुअल इनकम आपको यहाँ पता चलती है, और यहाँ आपको पता चला कि भाई मुझे 28,000 टैक्स भरने का आता है, तो आपने 25 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को यहाँ प्रीवियस ईयर में ही दे दिया है, तो आपको 25 अभी देने की जरूरत नहीं, उसका आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट पे 3,000, और सपोज आपने एक्सेस भर दिया है कि भाई मेरे को सिर्फ 23,000 भरना था और मैंने 25 भर दिया है, तो ये केस में आपको ब्याज के साथ गवर्नमेंट 2,000 रिफंड करेगी। तो गवर्नमेंट को अपना टैक्स टाइम पे मिल जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, टीसीएस, टीडीएस, दैट यू विल गोइंग टू लर्न इन योर एमकॉम फाइनल। Okay, but see, I have discussed with you many times the concept of TDS and TCS, so I am not taking much of your time in that. But see, what is advanced tax that I am discussing with you? That's in advanced tax what we are supposed to do. That advanced tax, every assessee, कोई भी assessee होता है, what he has to do,
he has to do the estimate of his income ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अपनी प्रीवियस ईयर में वो कितनी इनकम कमाएगा उसका वो एस्टिमेट निकाल देगा कि भाई प्रीवियस ईयर में मैं इतनी इनकम से कमाऊंगा। फिर वो एस्टिमेटेड इनकम पे वो एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करेगा। एस्टिमेटेड वो टैक्स कैलकुलेट किया तो उसको पता चला कि भाई मुझे इतना एस्टिमेटेड टैक्स भरना है। लेकिन देखो आपको पता है कि इसमें से समझ लो एस्टिमेटेड टैक्स इतना भरना है, लेकिन मुझे पता है कि इनकम अर्न करता हूँ तो इसमें से कुछ टीडीएस वीडीएस कट के मेरे पास आएगा पैसा, तो यहाँ से मैं इसमें से टीडीएस निकाल देता हूँ। अगर सपोज मैंने एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया से 25,000 और टीडीएस मैंने काट दिया कि भाई टीडीएस के कट के 10,000 तो कट के ही आएगा, और मैंने पता चला कि भाई मुझे 15,000 टैक्स भरने का आए ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या देखना है, एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करो, एस्टिमेटेड इनकम पे एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से टीडीएस कट जाता है तो उसको निकाल दो। और आफ्टर दैट इफ यू फाइंड आउट एनी अमाउंट एंड इफ दिस अमाउंट इज मोर देन ₹10,000 then you are supposed to pay advance tax. Suppose આ amount તમે ગણ્યું કે મને એસ્ટિમેટેડ એવું લાગે કે એસ્ટિમેટેડ ટેક્સ મારે 7,000 જ ભરવાનો આવશે, तो एडवांस टैक्स प्रोविजन आपको लागू नहीं पड़ेगी। एडवांस टैक्स प्रोविजन कब लागू पड़ेगी, when you calculate the tax on your estimated income, that is for advance tax। और ये एडवांस टैक्स का अमाउंट अगर आपका 10,000 या उससे ऊपर जाता है देन यू हैव टू पे दी एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स आपको कब पे करना है, तो यू डोंट हैव टू पे, यू हैव टू पे इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। तो आपको प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट में, सपोज ये 10,000 भरने का है तो 10,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में अलग अलग डेट को अलग अलग परसेंटेज से भरना है। ओके, so that is the provisions of the advance tax. So I have given you a brief idea about the what is advance tax. Now let us discuss the same from the material. Okay, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us discuss the provisions of advance tax. So what is advance tax provision? That every person लायबल टू पे एडवांस टैक्स। देखो यहाँ हुआ एस्टिमेट जो मैंने आपको बताया यहाँ नहीं लिखा, लेकिन एडवांस टैक्स किसको कहते हैं, तो क्या आपकी जो एस्टिमेटेड इनकम है उस पर जो टैक्स कैलकुलेट करते हो और उसमें से टीडीएस और वो सब लेस कर देते हो, उसके बाद जो टैक्स आता है उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। तो अगर आपका एडवांस टैक्स जो है, देखिए एवरी पर्सन लायबल टू पे एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स पेएबल इज ₹10,000 और मोर। तो एडवांस टैक्स पेएबल का अमाउंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेटेड इनकम निकालो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से टीडीएस लेस करो और उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। नाउ इफ दिस एडवांस टैक्स कैलकुलेटेड बाय यू, मतलब टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम इज नोन एज tax on estimated income after deducting the TDS is known as the advance tax. Now if this advance tax liability अगर आपने estimate calculate की और if that amount is exceeding ₹10,000, तो क्या बोला है, is ₹10,000 exact or more, exact 10,000 या उससे ज्यादा है, then the advance tax provisions are applicable to you। देखो all the items of income are liable for advance tax, मतलब કોઈ પણ સોર્સથી તમને ઇન્કમ અર્ન કરતા હોય એ બધા પર એડવાન્સ ટેક્સ તમારે ભરવાનો છે જે ટેક્સેબલ ઇન્કમ છે। તો સ્કીમ ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ ઇઝ ઓલ્સો नोन एज पे एज यू अर्न, मतलब गवर्नमेंट यही कहती है कि जैसे जैसे कमाते जाते हो उसी टाइम पे थोड़ा 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 टैक्स भर दो, और वो सही भी है। એવું ને કે પ્રીવિયસ યરમાં કમાઈને વાપરી નાખે, અસેસમેન્ટ યરમાં ગવર્नमेंट कैसे टैक्स આપો तो यार नहीं है पैसा अपने पास। नहीं, ऐसा होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो और असेसमेंट ईयर में जब टैक्स फाइल का रिटर्न फाइल करना होता है लोग पैसे ढूंढते हैं कि हमारा आटलो बड़ो टैक्स आए तो पैसा कैसे शोधवा पर से लाए। तो ऐसा ना हो इसीलिए आप एडवांस टैक्स जैसे जैसे कमाते जाओ, इफ योर टैक्स लायबिलिटी यू फील दैट इट इज मोर देन 10,000 यू पे दी एडवांस टैक्स। इसीलिए एडवांस टैक्स के प्रोविजन को क्या किया कहा गया, पे एज यू अर्न। देखो ये एडवांस टैक्स के प्रोविजन एक ही केस में लागू नहीं पड़ता, देखो बाकी सबको एडवांस सबको ये प्रोसेस करना है। तो आपको आपकी एस्टिमेटेड इनकम गिननी है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, उसमें से टीडीएस आप निकाल, और टीडीएस निकालने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस बेस करने के बाद भी 10,000 से ज़्यादा है तो यू हैव टू पे दी एडवांस टैक्स। बट सिर्फ दिस एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। देखो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और वो भी कब, whose एज इज 60 ईयर्स और मोर, 60 वर्ष, मतलब सीनियर सिटीजन से
ओके, और वो इंडिविजुअल है। और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर who does not having the income chargeable under the head business and profession, मतलब कोई इंडिविजुअल है, उसकी एज 60 से ज़्यादा है, 60 या उससे ज़्यादा है, और पूरे साल में उसको बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम तो 60 नहीं ऊपर नो है, तो एडवांस टैक्स भरवा। सपोज ही इज नॉट हैविंग अ बिजनेस इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब सपोज ही इज अर्निंग द इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम और एनी अदर रेंटल इनकम, एंड though his tax liability exceeding 10,000, he don't have to pay the advance tax. Advance tax आपको तभी पे करना है कि when you don't have to pay only in one situation, if your age is more than 60 years and if you don't have an income from business and profession. अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो ही आपको एडवांस टैक्स भरना है, तो ही आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ऐसा कहता है कि इंडिविजुअल हु इज हैविंग द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर at any time during the year and who does not have an income chargeable to tax under the profit and gains of business and profession is not required to pay advance tax। वो ये एक ही सिचुएशन में उसको एडवांस टैक्स भरना नहीं है। ठीक है, उसको एडवांस टैक्स एक ही सिचुएशन में उसको नहीं भरना है। ओके, अभी देखो एडवांस टैक्स मैंने आपको बताया उसको 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है, तो वो 4 इंस्टॉलमेंट कौन से है ध्यान रखना, आगे सम से इसके आधार पे, तो ये 4 डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि हाउ टू पे द एडवांस टैक्स। तो देखो आपको एडवांस टैक्स कब पे करना है, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में? यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ओके, प्रीवियस Previous year. ईयर में नहीं, यू हैव टू पे द टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को इन लोगों ने 4 पार्ट में, सपोज ये प्रीवियस ईयर है से 2022-23 is my previous year. Okay, it will start on 1st April 2022 and it will end on 31st March 2023. So this is my previous year. Okay, now in this previous year in 4 installment I have to pay the advance tax. देखो, तो ये क्वार्टरली ही बोल सकते हो आप। देखो पहला अप्रैल, मई और जून, अप्रैल के बाद मई और जून, अप्रैल महीना पूरा, मई महीना पूरा और जून की 15 तारीख। ओके, मतलब अप्रैल मई और ये जून महीने की 15 तारीख को, 15 जून को आपका जो भी एडवांस टैक्स का अमाउंट आपने एस्टिमेट किया है उसका कितना तक पे कर दो आप। देखो एडवांस टैक्स 15% ऑफ एडवांस टैक्स, सपोज समझ लो मैंने कैलकुलेट किया और मुझे लगा कि भाई मुझे मेरी एस्टिमेटेड इनकम पे 1 लाख एडवांस टैक्स भरने का आता है, तो इसका 15%, इसका 15% में कब तक पे कर दूं, 15 जून तक, मतलब અહીંયા 15,000 रुपये भरी है। પછી પાછી રાહ જોઈશ। एंड सपोज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, 15 सितंबर को, मतलब जून के बाद जुलाई गया, अगस्त गया और सितंबर की 15 तारीख को, 15 सितंबर को आई विल पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखो मुझे लगता है कि भाई मेरी एस्टिमेटेड इनकम पे 1 लाख टैक्स भरने का आएगा, 15 मैंने भर दिया, अभी बाकी कितना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है। ओके, अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल, अप टू बोला है, मतलब देखो અહીંયા તમે 15 ભર્યા તો 1 લાખના 45% સુધી ભરવાનું છે। 1 લાખના 45% એટલે કેટલા થાય, 45,000 સુધીનો ભરી દો તમે। હા જો 45,000 સુધીનો ભરો એનો મતલબ તમે અહીંયા 15 તો ભરી જ દીધા છે, એટલે અહીંયા 15% ભર્યા ને અહીંયા 45 ભરવાના, તો બાકીનો ડિફરન્સ કેટલો થાય, 30%। તો હિયર યુ હેવ ટુ પે 30,000, અહીંયા 15 અને અહીંયા 30, 15 ને 30 કેટલા થઈ ગયા, 45 થઈ ગયા। ઓકે, અપ ટુ 45%, मतलब અહીંયા 15 ભર્યા અને અહીંયા 45% સુધી ભરવાનું છે, એનો મતલબ બાકીના 30%, એટલે 1 લાખના 30%, 30,000 તમે અહીંયા ભરો। ઓકે, फिर बोला है ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर मतलब देखो ये यहाँ सितंबर के बाद अक्टूबर गया, नवंबर गया और दिसंबर की जो 15 तारीख आती है यहाँ तक आप 75% कर दो। देखो आपने ऑलरेडी 15 और 30, ओके, मतलब 45% भर दिया, तो बाकी का 30% ऐड करोगे तो मतलब यहाँ पे दूसरे 30,000 में भरूंगा, तो यहाँ मैंने यहाँ तक मुझे 75 भरना है, तो यहाँ में 15 ने 30 तो भरी એટલે બાકીના 30 હું અહીંયા ભરીશ, તો અહીંયા મારો 75% સુધીનો ભરાઈ ગયો।
હવે देखो ડિસેમ્બર થી જાન્યુઆરી અને માર્ચ, તો માર્ચની 15 તારીખ સુધીમાં મારો 100% એડવાન્સ ટેક્સ ભરવાનો. તો એડવાન્સ ટેક્સ મારો કેટલો ભરવાનો થાય છે? 1 લાખ રૂપિયા મેં એસ્ટિમેટ કર્યો છે. એમાંથી 15 ને 30, 45 ને 30, 75 ભરી દીધા. તો બાકી કેટલા રહ્યા? 25%. ओके, 25. तो बाकी का जो भी 25% है, मतलब 25,000 दैट यू हैव टू पे हियर. ओके, तो यहाँ आप ध्यान रखना कि यहाँ अप टू लिखा है. मतलब पहला 15% 1 लाख ना काढ़ी दो, પછી બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવે તો 45% નહીં કાઢવાના. તમે 15 તો ઓલરેડી ભર્યા છે, તો 15 અને 45 નો ડિફરન્સ કેટલો? 30. તો દેટ 30% યુ હેવ ટુ પે. પછી 75% કીધું છે, તો તમે 45 તો અહીંયા સુધી ભરી દીધા છે, તો બાકીનો ડિફરન્સ કેટલો? 30,000. તો 30% ભરવાના. તો પછી પૂરેપૂરો એડવાન્સ ટેક્સ, મતલબ તમે ઓલરેડી 75 તો ભરી દીધો, તો બાકીના 25% પછી ભરવાના. which you are supposed to pay the advance tax. Understood all of you? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes. बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके बेटा. Yes, Okay, sir. go ahead. Okay. Just a minute. ओके, तो ये एडवांस टैक्स आपको भरना है, और कैसे भरना है वो हमने देख लिया. ठीक है, अभी देखो, सपोज समझ लो कि मुझे ये एडवांस टैक्स कब तक पे करना है. व्हाट इज माय लास्ट इंस्टॉलमेंट? लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 15th मार्च. यू कैन सी हियर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 15th मार्च. ओके, सपोज समझी लो कि તમારે માર્ચ સુધી ના ભરાયો તમારાથી, અને માર્ચ પછી તમારું એસેસમેન્ટ યર ક્યારે પૂરું થાય? તો કે 31મી માર્ચે. 15 માર્ચે ના ભરે, એની જગ્યાએ બધો એડવાન્સ ટેક્સ, એટલે જેટલું બી બાકી છે એડવાન્સ ટેક્સનું પેમેન્ટ તમે 31 માર્ચ સુધી ગણશો ને, तो इट इज ट्रीटेड दैट यू हैव पेड द एडवांस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर. मतलब 15 मार्च आपकी ड्यू डेट तो है, लेकिन यहाँ आपने नहीं पे किया, और उसकी जगह आप 31 मार्च तक जो भी बाकी अमाउंट है वो आपने भर दिया. इट इज ट्रीटेड दैट यू हैव पेड द एडवांस टैक्स इन द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर में भरा ऐसा माना जाएगा. देखो, any payment of advance tax paid before 31st March shall be treated as advance tax paid during the financial year. 15 માર્ચ પછી પણ કરશો, અને 31 માર્ચ સુધી કરી દો અહીંયા સુધીમાં, it is treated that it is paid in the previous year itself. Okay, now see, अगर ये लास्ट डेट है 15 तारीख, उस दिन छुट्टी है, तो क्या करने का? देखो, इफ द लास्ट डे ऑफ द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कोई भी, ये 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर या 15 मार्च, उस दिन अगर छुट्टी होगी तो क्या करने का? तो नेक्स्ट डे. तो देखो, इफ लास्ट डे ऑफ द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज अ डे ऑन विच रिसीविंग बैंक इज क्लोज. देखो, हॉलीडे नहीं है, लेकिन बैंक बंद है. हॉलीडे भी हो सकता है उस दिन, बैंक में स्ट्राइक भी हो सकती है, दूसरा कोई रीजन हो सकता है, बैंक बंद है. ओके, ऑन द लास्ट डे, तो असेसी कैन मेक द पेमेंट ऑन द नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे. 15 मार्च को या 15 जून को या 15 सितंबर या दिसंबर को बैंक बंद है, तो आप एडवांस टैक्स नेक्स्ट डे भर सकते हो. और अगर आपने ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट डे भरा है, देखो एडवांस टैक्स एक दिवस पर मोड़ो भरशो ने, तो देर आर टू सेक्शन विच विल गेट एट्रेक्टेड. हमણાં આપણે ભણીશું ઇન્ટરેસ્ટના સેક્શન. તો in such case interest under section 234B and C is applicable. તમે જો આવી સિચ્યુએશનમાં એક દિવસ મોડું થયું છે, in that case the interest will not be applicable. So that point it says, okay, and in such case mandatory interest leviable under section 234B and 234C is not charged. तो ऐसी सिचुएशन में 234B और C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ओके, तो अगर आपने एक दिन डिले किया है, तो जनरली क्या होता है कि एडवांस टैक्स पे करने में डिले करते हो, इफ देयर इज अ डिफरमेंट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, देन इन दैट केस इन दैट केस एक मिनट,
तो सी अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने एक दिन डिले किया है, बैंक बंद है उसकी वजह से, तो 234 बी और सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और देखो ये पॉइंट हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जनरली सभी लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जो लोग 30 ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं पीजीबीपी में, हमने पढ़ा है पीजीबीपी, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरना है, आगे के 3 इंस्टॉलमेंट उसको नहीं पे करने हैं। मतलब पूरा 100% वो 15 मार्च को भर सकता है। तो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इंस्टेड ऑफ 4 फॉर दी असेसीज अवेलिंग दी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, हमने पढ़ा ना 44 एडी 44 एडी ये इन पीजीबीपी, तो वो लोग जो है उन लोगों को एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना है। तो दिस वर दी प्रोविजंस ऑफ द एडवांस टैक्स। समझ में आया एडवांस टैक्स के प्रोविजन? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. No, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये एडवांस टैक्स आपके सिलेबस में एक लिखा है एडवांस टैक्स, आपको लगा बहुत बड़ा चैप्टर होगा, ये कोई चैप्टर नहीं है, इतना सा ही ये हमारा एक पॉइंट था यूनिट 3 का, दैट इज ओवर। ओके, नाउ ये यूनिट 3 का ही एक दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। देखो देयर आर 3 सेक्शंस इन विच द इंटरेस्ट इज लेविड, दैट इज interest under section 234A, 234B and 234C. There are 3 sections under which the interest is levied. Okay, तो देखो ये 3 सेक्शन हमें अच्छे से पढ़ने हैं और इसका सम भी मैं आज ही अभी कराऊंगा, और ये सम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बराबर ध्यान से समझना है तीनों पॉइंट। तो देखो देयर आर 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 दैट इज, so see suppose if I talk about, there are 3 sections. Section 1 is 234A. There are 3 sections under which the interest is levied under section 234A. एक दूसरा सेक्शन है 234B और एक तीसरा सेक्शन है 234C। ओके, तो ऐसे 3 सेक्शन है। ओके, तो वो तीनों सेक्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट प्रोविजन हम डिस्कस करते थे, ठीक है, वन बाय वन। देखो सो सी interest levied by the government, levied by government। इंटरेस्ट हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को देना पड़ता है अंडर 3 सेक्शंस। देयर आर 3 सेक्शंस अंडर विच यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट। तो देयर 3 सेक्शंस आर विच वन? द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 234A, second section is section 234B, and third section is 234C. So these are the 3 sections under which you are liable to pay interest. Okay, तो these 3 section, अगर ये तीनों सेक्शन में कोई एक वर्ड में बोला है तो इंटरेस्ट पेबल बाय असेसी। ओके, तो ये सेक्शंस का नाम क्या है कि अंडर दीज 3 सेक्शन असेसी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। भी असेसी को इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा? तो अंदर देयर आर 3 सिचुएशन। देखो सेक्शन 1 234A, 234A में आपको इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा? देखो अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने आपको 3 ड्यू डेट बताई कि आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 जुलाई को, अगर ओके, अगर आप या तो फिर 31 अक्टूबर को या तो फिर 30 नवंबर को, 3 अलग अलग डेट है। जो वो ट्रांसफर प्राइसिंग जिसको लगता है उसके लिए 38 नवंबर है। जिसको ऑडिट करवाना पड़ता है या तो फिर कंपनी है या तो फिर पार्टनर ऑफ द फर्म whose बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गेट ऑडिटेड, ये इन लोगों के लिए 31 अक्टूबर है।
और बाकी सभी लोगों के लिए 31 जुलाई है। तो ये 3 ड्यू डेट है। इससे पहले आपको क्या कर देना है, देखो आपको 2 काम करना है, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न, और दूसरा क्या काम करना है, यू हैव टू पे योर टैक्स। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये डेट के बाद भी आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। कब तक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई आप ये रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर को नहीं फाइल किया तो आप 31 मार्च तक वेट करो, फिर मार्च खत्म हो जाए, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 मंथ्स तक आप आपका अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये रिटर्न जो फाइल करते हो 31 दिसंबर तक, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको कहते हैं बी लेटेड रिटर्न। तो अगर आपने बी लेटेड रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, वन थिंग इज वेरी मच श्योर दैट यू हैव फाइल योर रिटर्न आफ्टर दी ड्यू डेट, और आपने जो लास्ट में फाइल किया है वो रिटर्न को फाइनल गिना जाए। तो आपने आपका रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो अगर आप डिले करते हो किस चीज में, क्योंकि रिटर्न फाइल करने में गवर्नमेंट ने कोई रस नहीं તમે रिटर्न टाइम पर फाइल करो कि ना करो, એના શામાં રસ હોય, गवर्नमेंट इज हैविंग ए इंटरेस्ट इन अ टैक्स। लेकिन अगर आपने रिटर्न डेट फाइल किया है, ओके, और साथ में टैक्स भी आपने गवर्नमेंट को लेट दिया है, तो आपसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी अंडर सेक्शन 234A में। 234A का इंटरेस्ट कब लगेगा कि when the assessee is filing the return after the due date, then the interest under section 234A is levied। okay, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है, 234B क्या है, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है लेकिन एडवांस टैक्स आपका असेस टैक्स से कम है, समझ लो कि आपको ऐसा लगता था कि भाई मारो एडवांस टैक्स 1 लाख થશે, પછી તમે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સમાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, એ ટેક્સ આવ્યો 1,20,000, પછી એ લોકોએ તમારું રિટર્ન ચેક કર્યું અને પછી ખબર પડી કે તમારે 1,30,000 ટેક્સ ભરવાનો આવે। એનો મતલબ તમે પ્રીવિયસ યરમાં તમારી ખરેખર ટેક્સ લાયબિલિટી કેટલી હતી, 31, તમે એસ્ટિમેટ કેટલું કર્યું કે 1 લાખનું, પછી તમારી એકચ્યુઅલ ઇન્કમ પર તમે ટેક્સ ગણ્યો કેટલો હતો કે 1,20,000નો, પછી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે તમારું રિટર્ન અસેસ કર્યું, એના પર જે ટેક્સ આવ્યો એ કેટલો આવ્યો, 1,30,000। એનો મતલબ અહીંયા તમે ઓછો ટેક્સ ગણીને ઓછો ટેક્સ ભર્યો એડવાન્સ ટેક્સ। तो इफ यू पेड दी लेस एडवांस टैक्स, मतलब आपने एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं किया और कम एडवांस टैक्स पे किया है, फॉर दैट यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ओके, नॉट ओनली दैट, आपको मैंने बताया कि एडवांस टैक्स आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, तो कुछ समझ लो कि मेरा असेस्ड टैक्स जो है वो 1,30,000 है, ओके, और इसका सपोज 1,20,000 આપણે લઈએ કે 31 લો, ચાલો 31, તમારે પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો ભરવો પડે, 1,30,000 ના 15% કરું તો 1,30,000 ના આપણે 15% કરીએ તો 1,30,000 ના 15% હું કરું તો મારે પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મારો આવવો જોઈએ 19,500। હવે ખરેખર મેં એસ્ટિમેટ કેટલાનું કર્યું, 1 લાખનું, એટલે મેં કેટલા ભર્યા પહેલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 15,000। तो खरेखर मारे भरवो કેટલો જોઈતો હતો પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 15 જૂને, તો આઈ હેવ ટુ પે 19,500, મેં કેટલો પે કર્યો તો કે 15। તો આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે 4,515 જૂને ઓછા ભર્યા ને, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિફરમેન્ટ। તો આના પર તમારે વ્યાજ ભરવું પડે, તો that interest is known as 234C। तो देखो there are 3 sections under which the interest is levied। okay, section 1 234A, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हो और साथ में टैक्स भी लेट देते हो तो कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, 234A का। अगर आपने एडवांस टैक्स कम पे किया है, मतलब देखो ये वो दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा फॉर नॉन और लेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। एंड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट if there is a deferment in the payment of advance tax, the estimated and actual વચ્ચેનો જે દરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો જે ડિફરન્સ છે ને, on that difference you are liable to pay interest under section 234C। so there are 3 sections, let us discuss one by one 234A, 234B and 234C along with the example। okay, so देखो an assessee 234A का इंटरेस्ट हम समझते हैं, can assessee shall be liable to pay interest under section 234A
at the rate 1% per annum. Sorry, not per annum, at the rate 1% per month or part of the month for the late filing of return, and interest shall be calculated on the amount of tax due, that is assessed tax on the total income less the advance tax or TDS if any. ओके ये अमाउंट पे एडवांस टैक्स कैलकुलेट सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। देखो आपने इसको शॉर्ट में फिर से रिपीट किया है। डिफॉल्ट क्या है? इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, then the what will be the period from the date of immediately following the due date of filing of return of income to the date of furnishing of return of income. And if the return of income is not filed, then from the date of immediately following the due date of filing of return till the completion of base judgment assessment under section 144, ये आपको मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो 234A के इंटरेस्ट की बात की गई है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। क्या है? देखो हमने इंटरेस्ट गणवानों की है। अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कोई भी चीज का, ठीक है, सपोज मैंने इंटरेस्ट गणવું છે। इंटरेस्ट गणવા માટે તમારી પાસે ત્રણ વસ્તુ જોઈએ। એક, કયા अमाउंट पर इंटरेस्ट ગણવાનું છે। सेकंड, कौन से रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और थर्ड, कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये तीन चीज ही आपको चाहिए। तो अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट ऑन व्हाट अमाउंट यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट। देखो 234A का इंटरेस्ट कब लगेगा कि इफ यू हैव टू फाइल द रिटर्न से ऑन 31 जुलाई, और 31 जुलाई की जगह आपने रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर को, तो यू कैन सी हियर देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो पीरियड है आपने लेट फाइल किया, ये लेट फाइल किया उतने पीरियड के लिए या पार्ट ऑफ द मंथ है तो उसको फुल मंथ गिनना है। तो मुझे 31 जुलाई से फाइल करना था और मैंने रिटर्न फाइल किया 15 अक्टूबर को, तो देखो जुलाई से तो पूरा चला गया, उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई के बाद देखो एक अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, और अक्टूबर के 15 दिन में मैंने रिटर्न फाइल कर दी। तो ये 15 दिन को एक पूरा 1 मंथ गिनना है। तो हियर हाउ मेनी मंथ्स आई हैव डिलेड फॉर दी 3 मंथ। 31 जुलाई फाइल करवानो तो એની જગ્યાએ મેં 15 ઓક્ટોબરે ફાઇલ કર્યું। તો જુલાઈ થી 15 ઓક્ટોબર સુધીનો પીરિયડ કેટલો થાય? તો કે જે દિવસ 31 जुलाई પતે એના પછીનો આખો મંથ ઓક્ટોબર, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर को किया, तो 15 अक्टूबर में ये 15 दिन को मुझे वन फुल मंथ गिनना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर दी पार्ट ऑफ दी मंथ। ओके, तो इसको आपको फुल 1 मंथ गिनना है। तो यू हैव टू पे दी इंटरेस्ट। तो ये एक टाइम पीरियड आपको पता चल गया कि जिस दिन फाइल करना था उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू होगा। कहाँ तक? तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल कर दिया वो डे। तो टाइम आपको पता चल गया। व्हाट इज द रेट? तो रेट यहाँ पे लिखा है 1% पर मंथ। एक महीनाનો 1% વ્યાજ લાગે। નાउ व्हाट इज द अमाउंट? કે તમારો જે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે જે તમારો ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અસેસ્ડ ટેક્સ। એ ટેક્સ માઇનસ તમે ડ્યુરિંગ ધી પ્રીવિયસ યર जो कोई एडवांस टैक्स भरी दीधो तो एडवांस टैक्स एमांथी लेस करी दो। सपोज ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर अगर आपका कोई टीडीएस कट गया तो वो लेस कर दो, और इसके बाद जो अमाउंट बचा है ऑन दिस अमाउंट यू हैव टू पे दी इंटरेस्ट। सपोज समझी लो कि मारो एडवांस असेस टैक्स डिपार्टमेंटे कैल्क्युलेट करो कि मारे 2 लाख एडवांस टैक्स भरवानो आवे, सॉरी एडवांस टैक्स नहीं, इनकम टैक्स असेस्ड टैक्स ये डिपार्टमेंटे नक्की करे। હવે ડ્યુરિંગ ધી પ્રીવિયસ યર મેં 50,000 રૂપિયા એડવાન્સ ટેક્સ ભરી દીધો છે, મારો ટીડીએસ 1 લાખ રૂપિયા કપાઈ ગયો છે। ખરેખર મારી ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી કેટલી આવે? કે 2 લાખમાંથી 1.5 લાખ ભરી દીધા છે, મારી ટેક્સ લાયબિલિટી 50,000ની। તો 50,000 પર મારે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું। કેટલા મહિનાનું? તો કે 3 મહિનાનું। તો ફોર 3 મંથ્સ, ઓકે, કેટલા ટકાએ? તો કે 1%। तो इंटरेस्ट परसेंटेज એટલે 1/100। तो यहाँ से मैं 100 करूँगा तो फिर 500 multiplied by 3, I am liable to pay the interest of rupees 1500 under section 234A in the given case. Is it clear to everyone? Hello? Yes, sir. So this interest I am liable to pay. Okay. देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, assessee shall be liable to pay the interest under section 234A at the rate 1% per month
or part of the month for the late filing of return. Interest shall be calculated on the amount of tax due. એટલે ગવર્મેન્ટે તમારો જે ટેક્સ નક્કી કર્યો that is called tax assessed on the total income लेस आपने जो भी एडवांस टैक्स और टीडीएस भर दिया उसमें से लेस कर देना, ठीक है। ऑन दिस अमाउंट के इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट व्हाट परसेंटेज, तो गेट द 1%, कितने पीरियड का, ओके, फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી જ દીધું છે તો જે દિવસે ફાઇલ કર્યું તે દિવસે। હવે જો અહીંયા એક બીજી પોસિબિલિટી તમને હું बताऊं कि सपोज आपने आपका रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, मैंने आपको क्लास में भी बताया कि आपने आपका रिटर्न, सपोज यू हैव टू फाइल योर रिटर्न इन दिस असेसमेंट ईयर एज ऑन 31 जुलाई, तो आपने नहीं फाइल किया, तो जुलाई जैसे खत्म हुआ आपको एक नोटिस आई कि आप आपका रिटर्न फाइल करो और ये सब इंफॉर्मेशन दे दो, आपने नहीं दिया। दूसरी बार नोटिस आई, आपने कुछ नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, से ऑन 31 दिसंबर उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी ना उसके बेस पे उनने आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो जो અહીંયા તમે રિટર્ન ફાઇલ જ નથી કરી, એ લોકોએ સીધું જ તમને ટેક્સ ભરવાનું કહી દીધું, તો આ કેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતના ગણશો, તો કે આ તારીખથી ગવર્મેન્ટે જે દિવસે ટેક્સ અંડર સેક્શન 144 ગવર્મેન્ટ એની પાસે માહિતી છે એના પ્રમાણે જ્યારે ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરે तो दैट इज कॉल्ड टैक्स कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 144 और इसको कहते हैं बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, अगर गवर्नमेंट ने बेस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर दिया तो वो केस में आप पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टिल द डेट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड, सी देखो, फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम to the date of completion of assessment under section 144। तो गवर्नमेंट ने आपका असेसमेंट कौन सी डेट को कंप्लीट किया से 31 मार्च को, तो फॉर दिस पीरियड यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन दी टैक्स अमाउंट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ओके। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 234A, ओके। अब देखो एक दूसरा एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि सपोज एक सिचुएशन है, भाई मुझे मेरा रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करना था और ये रिटर्न पे मुझे 20,000 टैक्स भरना था, तो मैंने क्या किया, 31 जुलाई को मैंने अपना टैक्स भर दिया और रिटर्न फाइल करने का मैं भूल गया। फिर 3, 4, 5 महीने के बाद मुझे याद आया कि रिटर्न फाइल करना है, फिर मैंने रिटर्न फाइल किया एज ऑन 30 अक्टूबर को मैंने रिटर्न फाइल किया। अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बोला था कि गवर्नमेंट में તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો કે ના ફાઇલ કરો એમાં કોઈ રસ નથી, એને ટેક્સ મળી જવો જોઈએ। 31 જુલાઈ ટેક્સ મળી ગયો, હવે તમે અહીંયા રિટર્ન લેટ ફાઇલ કર્યું ને तो in this case 234A is not applicable। ये लेट पेमेंट भले आपने लेट फाइलिंग किया लेकिन आपने टैक्स गवर्नमेंट को टाइम पे दे दिया है, तो इन दैट केस 234A इंटरेस्ट इज नॉट एप्लिकेबल। तो एक सम આપેલો છે તમારા મટીરીયલમાં, એ સમમાં ત્રણ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે, તો આપણે એ સમ સાથે સાથે કરતા જઈએ। तो वी हैव डिस्कस दी सेक्शन 234A, ठीक है। तो 234A हमने डिस्कस किया, अभी इसका ये सम है, एक सम है, देखो इसमें हम सिर्फ अभी थोड़ी देर सिर्फ 234A डिस्कस करें तो सिर्फ 234A की बात करेंगे, ओके। तो देखो एक असेसी है जिसकी टैक्स, देखो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स जिसकी एज 53 ईयर्स है, the resident individual for the year financial year 22-23 is computed 1 lakh। तो मतलब उसकी असेस टैक्स लायबिलिटी कितनी, 1 लाख रुपये, एंड he has paid the advance tax as follow। देखो उसने अलग अलग तारीख को, उसको 15 जून से पहले मतलब 12 जून को उसने 8,000 भर दिए, 15 सितंबर से पहले 10 सितंबर को उसने 12,000 भर दिए, 15 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर को उसने 30,000 पे कर दिए और 15 मार्च से पहले उसने 35,000 भर दिए। इतना अलग अलग देखो, अब अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल होता है 85,000, ओके। 12 8 20 9 10 30 50 50 ને 30 35 એટલે ખરેખર એડવાન્સ એની એક્ચ્યુઅલ ટેક્સ લાયબિલિટી કેટલી છે 1 લાખ ની, અમે એડવાન્સ ટેક્સ કેટલો ભર્યો 35,000 રૂપિયા, 85,000 રૂપિયા, આપણે એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી। 234A માં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, તો તમે રિટર્ન લેટ ફાઇલ કર્યું હોય। નાઉ સી એક્સ ઇન્સ્ટેન્સ ટુ ફાઇલ ઇઝ રિટર્ન with the balance tax and interest payable, there was no TDS from any income। इसकी कोई इनकम में से TDS नहीं कटा है, मतलब यही टैक्स है, उसमें से सपोज कोई TDS कटा नहीं है, तो कंप्यूट द टैक्स एंड इंटरेस्ट
the balance tax and interest is paid on 21st July and return is filed on the same day. देखो આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે બરાબર, અને તમે જુઓ તો કંઈ કીધું નથી તો આપણે એવું માની લઈશું કે આની ડ્યુ ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ ઓફ રિટર્ન 31 જુલાઈ છે. હવે તમે અહીંયા જુઓ કે ધ બેલેન્સ ટેક્સ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ આર પેડ ઓન 21st જુલાઈ. તો એનો બેલેન્સ ટેક્સ કેટલો થાય? અને 1 લાખ ટેક્સ લાયાબિલિટી છે. એડવાન્સ ટેક્સ એને 85,000 ભરી દીધો છે, એટલે બાકીનો 15,000 ટેક્સ એને ક્યારે પે કરી દીધો? સપોઝ 21 જુલાઈએ પે કરી દીધો અને તે દિવસે જ એનું રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધું. તો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ 234 એનું આવશે કે નહીં? યુ કેન સી હિયર व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सपोज इसके लिए मतलब ये है तो उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31 जुलाई. ओके, देखो उसने उसका जो भी टैक्स है उसमें से एडवांस टैक्स तो उसने प्रीवियस ईयर में ही 85,000 भर दिया. ये टैक्स उसका बाकी भरने का कितना गवर्नमेंट को देने का बचता है? 15,000. तो ये 15,000 उसने 31 जुलाई तक उसको पे करना था. उसकी जगह उसने ये 21 जुलाई को ये 15,000 टैक्स भी भर दिया और उसका रिटर्न भी फाइल कर दिया, ये ड्यू डेट से 10 दिन पहले. टेल मी वेदर ही इज लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A और नॉट. भरવું પડશે કે નહીં ભરવું પડે इंटरेस्ट? Yes or no? No, No, sir. sir. No. No, Because he sir. is- No, sir. Okay. तो इज नॉट ओके. तो देखो ये 234A के इंटरेस्ट के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, लास्ट में दिए. देखो केस नंबर 1, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एज रिटर्न ऑफ असेसमेंट रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इज फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. मतलब 31 जुलाई से पहले उसने अपना टैक्स भी भर दिया है, 31 जुलाई से पहले उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो ये केस में उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ये देखो वही सम में आपको बोला एक दूसरी सिचुएशन भी है कि इफ बैलेंस टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन 4th January 2024 एंड ही फाइल्स द रिटर्न ऑन द सेम डे. मतलब देखो उसको रिटर्न कब फाइल करना था? ही हैज टू फाइल द रिटर्न ऑन 31st जुलाई. उसको रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई 2023 और उसको ये डेट को ही टैक्स भरना था. और इसने क्या किया तो कि उसने टैक्स पे किया नहीं. देखो जुलाई तो पूरा चला गया और उसके बाद अगस्त भी चला गया, दिसंबर भी चला गया और यहाँ जनवरी महीने में जाके जनवरी महीने की 4 तारीख को, 4 तारीख है ना? यस, 4 जनवरी 2024 को, 4 जनवरी 2024 तो उसने अपना रिटर्न फाइल किया और टैक्स पे किया. अभी ये केस में देखो ही हैज मेड अ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड एट द सेम टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्स. इसमें इसका इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? सो आंसर इज यस. यू कैन नाउ कैलकुलेट इट. 3 थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट. एक टाइम, सेकेंड इज अमाउंट एंड थर्ड वन इज द रेट. लेट अस कैलकुलेट टाइम कितना डिले. तो અહીંયાથી આપણે ગણીશું જુલાઈની પછીનો મહિનો, તો ઓગસ્ટ આપકો, सितंबर आपको, अक्टूबर आपको, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 4 दिन. लेकिन उसको भी पूरा महीना ही गिन लेने का, मतलब जनवरी पूरा महीना. पार्ट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज 1 फुल मंथ. देखो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मतलब ही हैज मेड द डिले ऑफ 6 मंथ. अब अमाउंट, હવે જો સપોઝ એની અસેસ ટેક્સ લાયબિલિટી કેટલી છે તો કે 1 લાખ અને આખા વર્ષનું પ્રીવિયસ યરમાં એડવાન્સ ટેક્સ કેટલો ભરી દીધો છે તો he has paid 85,000. वो हमने कैलकुलेट किया अभी. देखो एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में भरी દીધો છે અને ખરેખર એનો ટેક્સ ભરવાનો કે લાયબિલિટી કેટલી છે 1 લાખ. તો અસેસમેન્ટ યર में એની લાયબિલિટી કેટલી આવતી તો કે 15,000. તો 15,000 પર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ થાય. व्हाट इज द रेट? रेट इज 1%. ऑन दैट लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट. तो देखो अमाउंट इज 15,000. कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का. व्हाट इज द रेट? 1. ओके, અહીંયા ડિવાઇડેડ બાય 12 ના કરતા કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ નો રેટ પર મંથ જ છે. એટલે તમે કે સર ડિવાઇડેડ બાય 12 નહીં કરવાનું કારણ કે આ ઇન્ટરેસ્ટ નો રેટ છે ને પર મંથ છે. સપોઝ એ પર એનમ આપ્યો હોત ને કે આખા વર્ષના 15% તો અહીંયા 100 ડિવાઇડેડ બાય 12 में કરે. આ તો એક જ મહિનાનો રેટ છે તો આપણે અહીંયા આગળ એક જ લઈશું ને અહીંયા ડિવાઇડેડ બાય 100 કરીશું. એ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા 100 થી ડિવાઇડ કરી દીધું. જો આ 15 × 150 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब ही इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ ₹900.
Let us see the answer. You can see the answer. Because in the second case, there is a delay of filing of return of income by 6 months, and consequently interest payable under section 234 is rupees 900. So 15,000 for 6 months at the rate 1%. So that is under 1500 multiplied by 6 हमने calculate किया. So that is 900 rupees interest that he is liable to pay. Now the same situation, same example, and third situation is here. Suppose देखो अलग अलग सिचुएशन इफ करके पूछा है आपको. अगर ये बोला है कि अगर बैलेंस टैक्स एंड इंटरेस्ट आर पेड ऑन 31st जुलाई, द टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड 31st जुलाई भर दी दो, सॉरी 21st जुलाई, बट ही फॉरगॉट टू फाइल द रिटर्न एंड रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 4th જાન્યુઆરી. હવે જો અહીંયા શું કર્યું એને કે મારે જે इंटरेस्ट से पेनल्टी जे कहीं पण છે तो और जो टैक्स है मुझे रिटर्न फाइल करना था 31st जुलाई को, ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले 21st जुलाई को ही जो भी टैक्स लायबिलिटी वो टैक्स भर दी, फिर यहाँ रिटर्न फाइल करना भूल गया, फिर वो मैंने 4 जनवरी को जाके फाइल किया. मैंने आपको बताया गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप रिटर्न फाइल करते हो नहीं करते हो, उसको उसका टैक्स मिल गया. यस और नो? सर. Yes. यस sir. यहाँ Yes, sir. इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? इंटरेस्ट नहीं No. लायबिलिटी नहीं लगेगा. No. so here नो interest सर. interest will not be levied. So you can see its answer कि देखो interest under section 234 is not applicable as the balance tax and interest are paid before the due date of filing of return of income. Okay, तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से की जो ड्यू डेट है उससे पहले ही उसने टैक्स भर दिया, 31 जुलाई पहला टैक्स पे कर दी. एक्चुअली फाइल द रिटर्न इन द 2023, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने लेट रिटर्न फाइल किए. गवर्नमेंट को उसने अपना असेस टैक्स जो भी रिमेनिंग था दैट ही हैज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट. सो सिंस इन दिस केस द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज नॉट एप्लीकेबल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? 234 બધાને સમજાયું? Yes. Yes, sir. Okay, now let Yes, us sir. discuss the next section, section 234B. Okay, 234B वो हम डिस्कस करेंगे. देखो 234A हमने रिटर्न लेट फाइल किया उसके लिए. नाउ सेक्शन 234B किसके लिए है? तो इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स તમે ભર્યો નથી કે ભર્યો છે તો ઓછો ભર્યો છે. ઓકે, so in that case interest under section 234B is applicable. देखो 234B क्या कहता है? Let us discuss. Interest under section 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax at the amount which is less than 90% of the assessed tax. What is assessed tax? टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टीडीएस जो होता है उसको हम असेस टैक्स कहते हैं. इसके 90% से कम पे किया है या तो फिर आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं है तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा. नाउ इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी लगेगी? क्योंकि इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट 1% per month or part of the month from the 1st April of the following financial year up to the date of determination of income, मतलब अंडर सेक्शन 40A. ओके, मतलब यहाँ पे भी आपको जिस दिन आपकी ड्यू डेट, देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको 40A में कब डिटरमाइन करना है? जिस दिन रिटर्न फाइल करते हो वहां पर अल्टीमेटली ड्यू डेट ही आया. ओके, और देखो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द असेस टैक्स एंड एडवांस टैक्स पेड. एडवांस टैक्स और असेस टैक्स अगर आपका जो डिफरेंस है उस पर आपको पे करना है. एंड असेस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम लेस टीडीएस. ठीक है, तो यहाँ टीडीएस टीसीएस है. देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है 234B का इंटरेस्ट. Okay, to see
Let us discuss. 234, what it says, 234B when it is applicable. So interest under section 234B is applicable in two situations. One, you have not paid एडवांस टैक्स. आपने आपको प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स भरने की आपकी जवाबदारी आती थी, आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, या तो फिर एडवांस टैक्स इज पेड बट it is less than 90% of assessed tax. ओके, तो आपका असेस टैक्स है उसके 90% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा, या तो फिर आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं है तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा. You have not paid the advance tax at all. એડવાન્સ ટેક્સ ક્યારે ભરવો પડે? હમણાં થોડી વાર પહેલા તમને કીધું કે તમારે પ્રીવિયસ યરમાં એડવાન્સ ટેક્સ ભરવો પડે. તમે પ્રીવિયસ યરમાં એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો નથી, કા પછી તમે ભર્યો છે તો એ કેવો છે તો કે તમારો જે અસેસ ટેક્સ આવે ને એના 90% થી ઓછો છે. નાઉ ધીસ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ ધેટ વોટ ઇઝ અસેસ ટેક્સ? કે તમારી જે એક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ, देखो એડવાન્સ ટેક્સ આના પર તમે ગણો. એડવાન્સ ટેક્સ ઇઝ ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન યોર એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ. तो एस्टिमेटेड इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और उसमें से टीडीएस आपका जो कटा है वो लेस करोगे और उसके बाद जो अमाउंट आता है दैट इज योर एडवांस टैक्स. नाउ व्हाट इज असेस टैक्स? तो असेस टैक्स इज તમારું પ્રીવિયસ યર પૂરું થઈ ગયું, અસેસમેન્ટ યર આવી ગયું, તો પ્રીવિયસ યરમાં તમે જે એક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ કમાયા છે એ એક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ પર તમે જે ટેક્સ ગણશો એ ટેક્સમાંથી તમારો ડ્યુરિંગ ધી પ્રીવિયસ યર જે ટીડીએસ ટીસીએસ ડિડક્ટ કરીશું ને એ પછીનો જે ટેક્સ આવશે that is your assessed tax. For example, suppose I have estimated that my tax on my estimated income, મારી estimated income પર મારો ટેક્સ આવશે 25,000. વધારે લઈએ થોડું, से 1 લાખ. ठीक है. I suppose during the previous year મારો TDS 30,000 કપાયો છે, એટલે મારો એડવાન્સ ટેક્સ ભરવાની મારી જવાબદારી કેટલી આવી તો કે 70,000. ઓકે, હવે સમજી લો કે મારી એક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ પર મેં જ્યારે ટેક્સ ગણ્યો તો ધેટ ટેક્સ ઇઝ 1,30,000, 1,40,000. एक्चुअल इनकम पे मैंने जो टैक्स कैलकुलेट किया 1,40,000. ओके, और 1,40,000 में से मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना टीडीएस कट गया है, अलग अलग लोगों ने मुझे पेमेंट करने में 30,000 काट दिया. तो यहाँ पे देखो तो मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है? 1,40 માંથી 30 જાય એટલે 1,10,000. હવે મારે જોવાનું છે કે મેં આ એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો છે તો એ પેડ, तो 234B लगने के चांसेस कम है. लेकिन मुझे साथ में देखो एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो 234B लगता है. यहाँ तो मैंने पे किया है, अभी आपने पे किया तो कितना किया है कि असेस टैक्स के 90% जितना पे किया. नाउ सी दिस इज माय असेस टैक्स, ये मेरा क्या है? असेस टैक्स. तो असेस टैक्स मेरा 1,10,000 है. अभी 1,10,000 का मैं 90% निकालूंगा. 1,10,000 का मैं अगर 90% निकालूं तो दैट इज ₹99,000. अगर मैंने 99,000 या उससे ज़्यादा एडवांस टैक्स पे किया है तो मुझे 234B नहीं लागू पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे मैंने कितना एडवांस टैक्स पे किया? सिर्फ 70,000. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 70,000 અને 70,000 ને તો અહીંયા તો ખાલી આ ચેક કરવા માટે જોવાનું. તો તમારે ખરેખર ભરવો કેટલો જોઈતો હતો તો કે 1,10,000. આ ચેક કરવા માટે જ જોવાનો. 90% તો ખાલી ચેક કરવા માટે કે અહીંયા સુધી ભર્યો હોય 99,000 મેં ભરી દીધો હોત તો મને 234B ના લાગે. અહીંયા તો લાગશે કારણ કે 99 થી ઓછો મેં ટેક્સ એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો છે. તો 1,10,000 ના 70,000 વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે છે ઓકે that is ₹40,000. Sorry, okay, that is 40,000. On this I am liable to pay interest under section 234B. સમજાયું? તમે જો અહીંયા એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો જ નહીં પ્રીવિયસ યરમાં તો 234B લાગુ પડે.
બીજી સિચ્યુએશન ક્યારે એડવાન્સ ટેક્સના લાગુ પડે કે તમે જે એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો છે ને એ અસેસ ટેક્સના 90% કરતાં ઓછો હોય તો એડવાન્સ ટેક્સ અને અસેસ ટેક્સનો જે ડિફરન્સ છે, એડવાન્સ ટેક્સ કેટલો તો કે 70,000, અસેસ ટેક્સ કેટલો 10,000, તો આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે 40,000 છે એના પર તમને ઇન્ટરેસ્ટ ભરવું પડે. કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ તો કે ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધી અસેસમેન્ટ યરના પહેલા દિવસથી લઈને જે દિવસે તમે તમારો અસેસ ટેક્સ ભરો તે દિવસ સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. ત્યાર પછી જે દિવસે તમારું અસેસમેન્ટ થાય તે દિવસ સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. ઓકે, આપણે હવે સમ સમજીએ. ओके, देखो ये सम है. तो टैक्स लायबिलिटी देखो ये मिस्टर एक्स है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दी आ गई है 1,00,000 रुपये. और देखो ये सम में आपको ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ कोई टीडीएस नहीं है, देयर वाज नो टीडीएस फ्रॉम दी एनी इनकम. मतलब यही आपका असेस टैक्स हो जाएगा. 1,00,000 रुपया जो आपको दिया है ये असेस टैक्स हो जाएगा. और ये सबका जो टोटल है दैट इज एडवांस टैक्स. आपको 1,00,000 असेस टैक्स भरना था, आपने कितना एडवांस टैक्स पे किया है 85,000. तो आपको 234B लगेगा या नहीं लगेगा ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा कि 1,00,000 का 90% निकालूंगा. तो 1,00,000 का 90% कितना होता है 90,000. और मैंने एक्चुअली एडवांस टैक्स कितना पे किया है 85,000. मतलब एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स. तो यहाँ मेरा 234B अट्रैक्ट हो जाएगा. तो 234B में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. किस पे देखो आ 90,000 खाली चेक करवा माटे તમારો ખરો અસેસ ટેક્સ કેટલો છે તો કે 1,00,000 અને 85,000. સમજી લો કે આ કેસની અંદર મેં 98,000 રૂપિયા એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હોત 1,00,000 ની જગ્યાએ. 1,00,000 ના 90% કેટલા થાય 90,000. તો કે એના 90% કરતા વધારે ભર્યો છે. यस, तो यहाँ 234B अट्रैक्ट नहीं होता, नॉट अट्रैक्टेड. लेकिन यहाँ मुझे ये 1,00,000 का 90% मैंने निकाल के देखा तो 90,000 होता है और मैंने पे कितना किया है सिर्फ 85,000. तो ये 1,00,000 और 85,000 का बीच का जो डिफरेंस है 15,000 ऑन दिस आई एम लायबल टू पे इंटरेस्ट. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ હંમેશા 15,000 પર જ ગણાશે. હવે અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં આપણે જોઈએ કે 234B નું ઇન્ટરેસ્ટ તો આપણને બે વસ્તુ તો ખબર પડી ગઈ કે મારે ઇન્ટરેસ્ટ 234B નું શાના પર પે કરવાનું છે કે ઓન ધીસ 15,000 રૂપીસ. કેટલા રેટથી તો કે @1%. હવે ત્રીજી વસ્તુ તમારે ખાલી એક જ વસ્તુ ગણવાની રહી, અમાઉન્ટ તમને મળી ગયું, રેટ તમને મળી ગયો. નાउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द टाइम, कितना टाइम में पे करना है. तो अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं. देखो अभी लेटेस्ट देखो बैलेंस टैक्स एंड इंटरेस्ट इज पेड. अब अगर यही तीन सिचुएशन में एज ऑन 31st जुलाई ओके एंड द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल ऑन द सेम डे. मतलब તમે તમારો અસેસ ટેક્સ ક્યારે ડિટરમાઇન કર્યો તો અહીંયા શું કીધું છે 234B નું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા પીરિયડમાં આપનું પે કરવું પડે. 234B का इंटरेस्ट કોને લે બધા જાગો છે ને હું એકલો જ છું અહીંયા. यस सर. जागे. जग रहे सर. हाँ. यस सर. हाँ, क्लास હોય તો ખબર પડે કે આ બધા સામે છે. અહીંયા તો પાછું એવું થાય કે હું અહીંયા બંધ કરું એકલો જ હોય એવું ના. देखो 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 बेटा 234B का इंटरेस्ट देखो यहाँ पीरियड क्या बोला है इंटरेस्ट लायबिलिटी 1% वो ठीक है. सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दी अमाउंट भी हमने कैलकुलेट कर दिया. यहाँ पे देखो इंटरेस्ट लायबिलिटी विल बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द 1st एप्रिल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर એટલે અસેસમેન્ટ યરના 1 એપ્રિલ થી લઈને टिल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. मतलब सेल्फ असेसमेंट ની ઇન્કમ તમે ક્યારે ડિટરમાઇન કરો તો અહીંયા તમે જો આ કેસમાં તમે તમારો ઇન્કમ ટેક્સ પે કરી દો છો એઝ ઓન 31st you pay your income tax as on 21st जुलाई. ओके, तो 21st जुलाई को आप आपका इनकम टैक्स भर देते हो. मतलब आपने आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन सी डेट को डिटरमाइन किया 21st जुलाई. तो અહીંયા इंटरेस्ट लागू પડશે 15,000 નું. देखो અહીંયા 1,00,000 મારે ભરવો જોઈએ તો એની જગ્યાએ મેં 85 ભર્યો તો આના પર મને इंटरेस्ट लागશે 15,000 પર. પણ કેટલા પીરિયડનું તો કે 1st એપ્રિલ ઓફ ધી અસેસમેન્ટ યર. मतलब આ મારું સપોઝ અસેસમેન્ટ યર હું 23-24 ગણું
23-24 ની પહેલી તારીખથી મતલબ 1 એપ્રિલથી લઈને જે દિવસે મારું ટેક્સ ડિટરમાઇન થાય ત્યાં સુધી તો 21 જુલાઈ હું ભરી દઉં છું. તો કેટલા મહિનાનો લગશે? એપ્રિલ આખો, મે આખો, જૂન આખો અને જુલાઈના 21 દિવસ. તો જુલાઈને પણ આપણે આખો જ ગણીશું. ઓકે, તો કેટલો? એપ્રિલ એક મહિનો, મે બીજો, ત્રીજો જૂન અને જુલાઈ. So there is a delay of 4 months. So how I will calculate the interest? જો 15,000 મારું અમાઉન્ટ, એના પર 4 મહિનાનું इंटरेस्ट 1% है, ओके, डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? इन द फर्स्ट केस इट वुड बी 150 रुपीज. So you can see here in the solution, okay, 600. okay, 600, sorry, 15,000 गुणिया 4, ओके, 15,000 गुणिया 4 करवाना, तो इट इज 600 रुपीज. सॉरी, 150 गुणिया 4 કરીશું 4, so it is 600 rupees. You can see the answer in the case 1, 15,000 multiplied by 4, 1% इंटरेस्ट ये लगेगा. अभी केस 2 देखो कि यहाँ पे आपने इनकम टैक्स डिटरमाइन किया 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी को आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया. ओके, बैलेंस टैक्स एंड अर्थ इज पेड ऑन 4 जनवरी एंड मतलब 4 જાન્યુઆરી એનો પોતાનો ટેક્સ ગણ્યો અને આ 1 લાખ ટેક્સ એવું ક્યારે ખબર પડી? 4 જાન્યુઆરી ને રિટર્ન फाइल કર્યું. तो इन दैट केस क्या होगा? देखो, डिले अमाउंट सेम रहेगा. 1 लाख એને ભરવાનું એની જગ્યાએ 85,000 ભર્યો તો અમાઉન્ટ ઇઝ 15,000. હાઉ મચ મંથ ધેર ઇઝ અ ડીલે? તો કે देखो, 1 એપ્રિલથી જ ગણવાનું અસેસમેન્ટ એની. એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર એન્ડ જાન્યુઆરી. ઓકે, so here there is a delay by him. So now say April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 करेगा. Okay. दस महीना થાય, 11 મહિના થાય છે. Sir, 10 months, sir. મારી ગણતરી સર, ઓગસ્ટનો 8 થઈ ગયો. ઓકે, આ ઓગસ્ટમાં 8 લખવાનું રહી ગયું છે એવું છે. ઓકે ઓકે, આમ બોલો ને તમે. હા, તો 10 મહિના જ થાય ને, તો देयर इज अ 10 मंथ्स. ओके, तो 10 मंथ्स डिले है, तो ये 15,000 पे 10 महीने का इंटरेस्ट. तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. जो डिवाइडेड बाय 12 ना करशो ભૂલથી એક્ઝામમાં, તો 15,000 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા સેકન્ડ કેસમાં આવશે. હવે થર્ડ કેસમાં તમે જુઓ તો થર્ડ કેસમાં શું કીધું છે? You can see here कि suppose if the balance of tax and interest is paid on 31st July, તો 31st July પે કરો તો એના પર આપણે ઓલરેડી ગણ્યું છે ત્રીજા કેસમાં, અને રિટર્ન એને જાન્યુઆરીમાં ફાઇલ કર્યો, પણ એને ટેક્સ ક્યારે ડિટરમાઇન કરી દીધો? 31st July એને ટેક્સ ભરી દીધો. અહીંયા 4 મહિનાનો જ ઇન્ટરેસ્ટ લાગશે, તો 15,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 4, so that is 600. So have you understood that how interest under section 234B is get calculated? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. યસ સર. Okay, now see, let us discuss પહેલા 234C આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ and then discuss the provisions of 234C का सम हम बाद में देखते हैं, ठीक है? अभी देखो 234C, तो 234C क्या कहता है यहाँ पे कि ये हमने B डिस्कस किया. नाउ 234C, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज attracted for deferment in installment of advance tax beyond the due dates. तो जितना डिले होता है, ओके, जो मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में जो डिफरेंस आता है,
वो डिफरमेंट पे आपको पे करना पड़ता है। एंड द इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर एवरी डिफर्मेंट। However, last installment 15 March, the interest liability would be 1% for 1 month. And such interest is calculated on the amount of difference between the advance tax payable up to the date of such tax actually paid. मतलब देखो यहाँ पे डिफरमेंट आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एडवांस टैक्स इज अ टैक्स ऑन अ डिफरमेंट। ओके सॉरी, 234C इज अ टैक्स ऑन अ डिफरमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम सम करके ही सीधा समझ लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज डिफरमेंट? देखो यहाँ पे इसने 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उसने जो टैक्स पे किया है, 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उसने जो टैक्स पे किया वो डेट से पहले। ओके, और उसकी जो जवाबदारी आती थी उससे जो कम टैक्स पे किया है, ऑन दैट वट एवर एक्चुअल इंस्टॉलमेंट ही इज लायबल टू पे एंड वट एवर एक्चुअली ही हैज पेड, दोनों का जो डिफरेंस है दैट he is liable on that he is liable to pay interest. Okay, let us discuss. देखो ये हमारा सपोज समझ लो અહીંયા બે વસ્તુ તમે જોઈ क्या ભાઈની एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी કેટલી છે? તો एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी is say ₹1 લાખ, 1 લાખ જ છે। હવે ખરેખર એને એડવાન્સ ટેક્સ કેટલો ભર્યો છે? તો કે 85,000। આ આખું ટોટલ અમાઉન્ટ તમારે શાના માટે લેવાનું? 234B માટે। But when you calculate the 234C, ओके, तो 234C માં તમારે શું કરવાનું કે ભાઈ આ 1 લાખના ટકા કાઢી લો। there are 4 due dates you know, that is 15th June, 15th September, 15th December and 15th March। ओके, ये 4 ड्यू डेट से पहले इसको कितना कितना एक्चुअली पे करना चाहिए था। तो તમે જુઓ પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આના 15%, એટલે અહીંયા 15%, અહીંયા તમે જાણો છો કેટલા ટકા? 45%, અહીંયા આગળ 75% અને અહીંયા આગળ એને 100% એડવાન્સ ટેક્સ આ ડેટ સુધીમાં ભરવાનો। સપોઝ એ 1 લાખ એની જે ખરેખર एक्चुअल लायबिलिटी છે એના પર ખરેખર તો दिस इज दी एक्चुअल टैक्स। अगर उसको कितना भरना था तो आ 1 લાખના 15,000, એટલે અહીંયા આગળ 15,000 એને ભરવાનો હતો। ये 1 लाखना 45%, मैंने आपको समझाया था कि 45 मतलब 45% तक भरना है। मतलब 15 उसने यहाँ भर दिया तो इसका ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 30% है। मतलब यहाँ पे उसको कितना पे करना है? 30,000 उसको पे करना है। यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस 30% है, तो यहाँ पे उसको 30,000 पे करना है। और यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस दैट इज 25,000। ऐसे करके इसको 1 लाख भरना है। ओके, अलग अलग इंस्टॉलमेंट। You can see in this way he is liable to pay advance tax in this way। ठीक है, मेरा कुछ अलग तरीका है, इसका अलग है। ठीक है, ये एग्रीगेट प्लेस है। આ રીતના પણ તમે લઈ શકો। 15, 45, 75 અને 1 લાખ આ રીતના એને ભરવાનું। તો ખરેખર ભર્યો કેટલો? ओके, तो ऐसे ये उनका और इजी रहेगा। मतलब एग्रीगेट करके लिया है यहाँ पे कि भाई इसको ये तारीख से पहले कितना पे करना था। तो कि અહીંયા 15,000, 15 ને 30 અહીંયા કેટલા ભરવા જોઈતા હતા? તો કે 45,000। આ તારીખ પહેલા 30 એટલે 75,000 અને આ તારીખ પહેલા એને 1 લાખ રૂપિયા ભરવા જોઈતા હતા। સો ધીસ ઇઝ અ ટોટલ અમાઉન્ટ યુ કન્સિડર કે 1 લાખના આટલા ટકા અહીંયા, 1 લાખના 45% અહીંયા, 1 લાખના અને 1 લાખના 100% અહીંયા, આ રીતના એને ટેક્સ ભરવો જોઈએ। હવે એને एक्चुअली ભર્યો કેટલો? તો देखो 12 જૂને એને કેટલો ભર્યો? 8,000 રૂપિયા। 12 જૂન એને ટેક્સ કેટલો ભર્યો? 8,000 રૂપિયા। 12 જૂન એટલે 15 જૂન પહેલા એને કેટલો ભરવો જોઈતો હતો? 15,000। 15 જૂન પહેલા એને ભર્યો કેટલો? તો કે 8,000। તો કે આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે છે, the difference between these two, 15 and 8, this difference 7,000 is a deferment। હવે deferment જે છે 8,000 એ ક્યાં સુધી ચાલુ રહેશે? તો કે તમે બીજો એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરી દેશો તો આ ડિફરન્સ જતો રહેશે। સપોઝ સમજી લો કે you have paid the next installment ₹3
25,000 નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમે કેટલો અહીંયા ભરો તમે જુઓ અહીંયા 12,000 તો અહીંયા તમે 12,000 બીજા ભરો છો અહીંયા 12,000 તો પેલા 8 ભર્યા હતા અને બીજા 12 ભરો એટલે ટોટલ કેટલા ભરી દીધા 20 અહીંયા જે આ ડિફરન્સ હતો 15 ભરવા જોતા તો 15 કરતા વધારે ભરાઈ ગયા તમારા તો આ ડિફરન્સ અહીંયા નીકળી જશે આર યુ ગેટિંગ વોટ આઈ ટ્રાય ટુ કન્વે કે આ ડિફરમેન્ટ તમારું ક્યાં સુધી રહેશે તો કે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સુધી અહીંયા તમારે આ 8,000 પર ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા મહિનાનું પે કરવાનું 3 મહિના સુધી કારણ કે પછી 3 મહિના પછી તમે બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરો છો તો આ જે ડિફરમેન્ટ છે પૂરું થઈ ગયું तो सी यू हैव टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 15 जून से 15 सितंबर तक के कितने महीने हैं 3 महीने तो 8,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ओके अब एक महीना 1% એટલે 3 મહિનાનું કેટલું તો એ રીતના તમારે જો એક મહિનાના 3 મહિના એટલે 1% 7,000 ના 1% કેટલા થાય તો કે 70 रुपये अब 70 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा 210 समझ में आए इसको यहाँ तक 15 भरने थे उसने भरे कितने 8 एक्चुअली कितना भरा 12 जून तक उसने 8,000 भरा तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 7,000 और देखो ये डिफरेंस जो भी है डिफरमेंट है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने पे निकल जाएगा मतलब आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक के 3 महीने ही गिनना है कि डिफरमेंट 3 महीने तक रहेगा तो यहाँ से यहाँ ये मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट से के बीच की जो डेट है 15 सितंबर तो 15 सितंबर तक का जो पीरियड है बीजू कहीं ना समझाए नहीं तो आपको याद रखो कि आप 15 जून ने 15 सितंबर वच्चे कितना महीना डिफरेंस है 3 महीना तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो यहाँ 7,000 पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 7,000 पे 1% के हिसाब से 3 महीने का तो ये 70 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 210 इंटरेस्ट दैट आई एम लायबल टू पे अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू किसी को कोई डाउट है पहला पॉइंट है उसमें हेलो हेलो No No, doubt. sir. ओके अभी हम देखते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट देखो दूसरा इंस्टॉलमेंट उसको कितना भरना चाहिए था देखो तो तुमने खबर है कि बीजो इंस्टॉलमेंट 15 जून आवे 15 सितंबर 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા અહીં આપણે લખી છે 15 સપ્ટેમ્બર એ પહેલા એને કેટલા ટકા ભરવા પડે આપણે એડવાન્સ ટેક્સના પ્રોવિઝન પણ જોયા ને ઉપર કે 45% ભરવા પડે યુ હેવ ડિસ્કસ વી હેવ ડિસ્કસ ધી પ્રોવિઝન્સ ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ હિયર ઓકે એડવાન્સ ટેક્સના પ્રોવિઝન ये तो 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા કેટલા ભરી દેવા 45% તમારો ખરેખર અસેસ ટેક્સ કેટલો છે તો કે 1 લાખ રૂપિયા તો 1 લાખના 45% એટલે મારે ખરેખર 45,000 ભરવા જોઈએ તો તમે ભર્યા કેટલા તો કે જો પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 8 અને આ 10 સપ્ટેમ્બર એટલે 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા આ 8 અને 12 ટોટલ મેં 20,000 ભરી દીધું મારે ભરવાના કેટલા થયા 45,000 ઓકે એની જગ્યાએ આ 20 કઈથી આ સમજાયું પહેલો 8 નો ભરેલો હતો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બીજા 12,000 भरे એટલે टोटल 20,000 हुआ तो ये दोनों टोटल कितना हुआ आपका 20,000 अभी आपको भरना कितना था 55,000 आपने भरा कितना ठीक है 20,000 ये दोनों का डिफरेंस कितना है ठीक है 25,000 तो 25,000 पे देखो ये 15 सितंबर और 15 दिसंबर के बीच में कितने महीने का गैप है 3 महीने का तो ये 3 महीने का आपको इंटरेस्ट 25,000 पे कैलकुलेट करना है 1% से એટલે તમે ગણો આવું કે ભાઈ 25,000 રૂપિયા પર 3 મહિનાનું 1% हिसाबથી इंटरेस्ट गणो तो 250 गुणिया 3 तो दैट इज 750 दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू आर लायबल टू पे ऑन 15 सितंबर देखो ये अभी देखो 15 दिसंबर से पहले आपको कितना भरना चाहिए 75,000 देखो यहाँ पे मैंने तीसरा इंस्टॉलमेंट कब भरा 21 दिसंबर को खरेखर मारे 75,000 એટલે 75,000 રૂપિયા મારે 15 ડિસેમ્બર સુધી ભરી દેવા જોઈતા તમે અહીંયા તમે જોયું 15 ડિસેમ્બર સુધી એને કેટલા ભરવા જોઈતા હતા 75,000 હવે 15 ડિસેમ્બર સુધી એને ભર્યા છે કેટલા देखो અહીંયા તમે ડેટમાં ધ્યાન રાખજો અહીંયા એને 15 ડિસેમ્બરે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નથી ભર્યો 21 ડિસેમ્બરે ભરે છે એનો મતલબ 15 ડિસેમ્બર સુધી એનું ભરેલું અમાઉન્ટ કેટલું હતું તો કે 15 ડિસેમ્બર સુધી તો એને 12 અને 8 20,000 જ ભર્યા હતા પછી ત્રીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તો એવો આવ્યો क्यारे भरे चे ही इज पेइंग ऑन 21st दिसंबर सॉरी ऑन 21st दिसंबर यस तो उसका 15 दिसंबर तक कितना 75,000 भरवा जो था जगह ने 20 भरे तो डिफरेंस इज हाउ मच 55,000
अभी आपको क्या देखना है कि देखो 15 दिसंबर और लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर, ये दोनों के बीच का गैप कितना है कि 3 महीने का, तो 3 महीने का डिफरमेंट रहेगा। तो 55,000 पर 3 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ 1650 થાય, તો 55 કઈથી આવ્યા? 75 અને 20 નો ડિફરન્સ. ओके, तो 1650 रुपया इंटरेस्ट देने आवश्यक. ओके, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट आप देखो, उसको 15 मार्च तक कितना भर देना है? 1 लाख. और देखो 15 मार्च तक उसने पे कितना भर दिया? देखो अभी 21 दिसंबर को उसने 30,000 भरा, वो भी आपको कंसीडर करना है, और 11 मार्च को उसने 35 भरा, वो भी कंसीडर करना है. तो 30 અને 35 તમે ભરેલા કેટલા હતા? 20, અને એની અંદર તમે 35 ને 30 65 એડ કરો તો કેટલા થાય? 85,000 યસ પેડ. ખરેખર એને 15 માર્ચ પહેલા કેટલા ભરવા જોઈતા હતા? તો કે 1 लाख, એની જગ્યાએ ભર્યા કેટલા? તો કે 85,000. अभी देखो लास्ट में आपको 3 महीना नहीं लेना है, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च को. पार्ट ऑफ द मंथ में છેલ્લામાં તમારે 1 મહિનો જ લેવાનો અહીંયા. કેમ? કે મારું અસેસમેન્ટ ઈયર ક્યારે પૂરું થઈ જાય? 31 માર્ચે, તો અહીંયા એક જ લેવાનો. અહીંયા ઉપરના 3 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. અહીંયા તમને કીધું છે, અહીંયા જો અહીંયા તમે આપણે પ્રોવિઝનમાં પણ જોયું કે લાસ્ટમાં 1 મહિનાનું જ આવશે. અહીંયા જે ડિફરન્સ છે દેટ ઇઝ અ 15,000, तो उस पे 15,000 एक महीनाનું 1% થી આપણે इंटरेस्ट गणीશું, दैट इज 150. और ये चारों अलग अलग डिफर्डमेंट का टोटल करेंगे तो 234 का सी का इंटरेस्ट इसका कितना आएगा? 2760. ओके, सो दिस इज द इंटरेस्ट पेएबल बाय हिम अंडर सेक्शन 234C. ओके, सो वी हैव डिस्कस 234A, B एंड C, और तीनों का इंटरेस्ट क्या आता है वो हमने देखा. Anyone has any doubt in this question? No, No, sir. सर Yes, बेटा. सर ये जो लास्ट था ना, जो मार्च 11 को पे किया, वो अगर मार्च 20 को पे करते तो फिर उसका कैसे एंट्री देते? 15 मार्च के बाद पे किया होता जो 35,000 था, तो फिर उसका कैसा दे देता? 20 માર્ચે તમે પે કર્યું હોય, તમારે અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ગણવા માટે 15 માર્ચ જ લેવાનું છે, બરાબર? હવે 20 માર્ચે પે કર્યું, તમે તમને શું ભણાયું? અહીંયા આગળ તમે ધ્યાન રાખો છો, અહીંયા એક પ્રોવિઝન ભણાયો હતો કે તમે જો 15 માર્ચે ના ભર્યો હોય અને એની જગ્યાએ તમે એના પછી પર ગણો ને, તો અહીંયા કંઈક તમને ભણાયું કે સપોઝ ઇફ ધ પેમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर, यहाँ पे आपको पढ़ाया. Yes, yeah. If any payment of advance tax is made before 31st March, shall be treated as advance tax paid during the financial year. એટલે સપોઝ 20 તારીખ હોત ને ત્યાં આગળ, તો પણ તમે ત્યાં આગળ 1 મહિનો જ, કારણ કે પાર્ટ ઓફ ધી મંથ તમે સમજો, ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ નોટ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન નંબર ઓફ ડેઝ, ઇટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન ધી પાર્ટ ઓફ ધી મંથ. અહીંયા 20 તારીખ હું 31 તારીખ સુધીની કોઈ પણ તારીખ હોત ને તો અહીંયા એક જ આવે. ક્લિયર? કારણ કે તમે 31 માર્ચ સુધી ગમે ત્યારે પણ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરો. અહીંયા તમને બે વસ્તુ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ 31 માર્ચ સુધી પે કરો છે ને એડવાન્સ ટેક્સ, તો અહીંયા આગળ તમારો એડવાન્સ ટેક્સનો પ્રોવિઝન અહીંયા એવું કહે છે, યુ કેન સી હિયર that if the advance tax is paid, see if the यहाँ पे if any payment of advance tax is made before 31st March shall be treated as advance tax paid during the financial year. ફાઇનાન્શિયલ યરમાં પે કર્યું છે એવું જ માની લેવામાં આવશે કે તમે 15 માર્ચ પછી પે કરો. તમે જો છેલ્લામાં 1 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણો છો, એકચ્યુઅલમાં ડિલે કેટલું થાય છે કે 15 માર્ચથી લઈને 31 માર્ચ સુધીનો ડિલે છે. પાર્ટ ઓફ ધી મંથ એટલો જ છે. 15 ની જગ્યાએ 20 હશે ને તો પણ ત્યાં એક જ મહિનો આવશે. ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ યોર ક્વેશ્ચન. ઓકે, એની અધર ડાઉટ? हेलो, किसी को अभी कोई डाउट है बेटा? सर पण एक्चुअल पेड में चेंज થશે તો જેવું સપ્ટેમ્બર ડિસેમ્બર માં થયું ચેન્જ एक्चुअल पेड માં, તો એવું લેટ પેમેન્ટ કરે એમાં નહીં થાય ડીલે. એનું કારણ છે કે તમે જુઓ, એક બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમે ભરી દો ને એટલે આગળનું ડિફરમેન્ટ નીકળી જાય, પણ છેલ્લામાં એકચ્યુઅલ પેડમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં આવે. 15 માર્ચ પહેલા તમારે 1 લાખ ભરવા જોઈતા હતા, બરાબર? એની જગ્યાએ તમે એવું કહે છે કે 20 માર્ચે તમે ભર્યા, બરાબર? તો હા, એટલે એ વાત તારી બરાબર છે કે તમે 1 લાખ ભરવા જોઈતા હતા 15 માર્ચે, તો તમે એકચ્યુઅલ પેડ તમારું ઓછું હશે, તો અહીંયા ડિફરન્સ આવશે કે 15 માર્ચે તારે આટલા ભરવા જોઈતા હતા, રેટમાં કોઈ ફરક નહીં પડે, પણ અહીંયા ફરક આવશે.
અહીંયા ફરક આવશે. સમજી લે કે તે 20 માર્ચે ભર્યા, હવે 15 માર્ચ પહેલા તારે કેટલા ભરવા જોઈતા હતા? 1 લાખ. અને સપોઝ સમજી લે કે આ બાકીના પૈસા તે હજુ ભર્યા નથી, તો અહીંયા 1 લાખ પર વ્યાજ ગણાય. એવું થાત, જે પ્રશ્ન પૂછ્યો બરાબર છે, કે સપોઝ એવું થાત કે મેં 15 માર્ચ પહેલા મારે 100% ભરવા જોઈતા. ઓકે, હવે આ 15 માર્ચ પહેલા મારે 1 લાખ ભરવા જોઈતા હતા, એની જગ્યાએ મેં અહીંયા 75,000 ભર્યા છે, ત્યાર પછી મેં નીચેનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નથી ભર્યો. તો આ જે ડિફરન્સ જે આવે, તો ઓન ધીસ ડિફરન્સ સી આઈ એમ લાયેબલ ટુ પે. એટલે જે ઉપર થયું ને એ વસ્તુ અહીંયા પોસિબલ છે. રીતે કીધું કે અહીંયા દેટ ઇઝ પોસિબલ, કે સપોઝ અહીંયા 20 માર્ચ હોત તો અહીંયા મારે 1 લાખ પર 85,000 પર આપણે સપોઝ સમજી લો કે મારે 1 લાખ ભરવા જોઈતા હતા. આ સમજ કે મારે આવી રીતના ગણવો છે. સપોઝ 15 જૂન, 15 સપ્ટેમ્બર, 15 ડિસેમ્બર અને 15 માર્ચ. ઓકે, તો અહીંયા સુધી મારે ભરવાના કેટલા છે? સપોઝ એકચ્યુઅલ ટેક્સ મારો 1 લાખ છે, એના 15% એટલે અહીંયા 15,000, અહીંયા 45,000, અહીંયા 75,000 અને અહીંયા 1 લાખ સુધીનો ટેક્સ ભરી. એની જગ્યાએ મેં એકચ્યુઅલ ટેક્સ સપોઝ સમજી લે કે અહીંયા મેં 15 માર્ચે 8,000 ભરી દીધા, અહીંયા મેં બીજા 20,000 ભર્યા, સપોઝ 12,000 ભર્યા, અહીંયા સુધી મેં 20,000 ભર્યા. સપોઝ આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મેં 21મી ડિસેમ્બરે, 21મી ડિસેમ્બર એટલે મને 21 ડિસેમ્બરે મેં 30,000 ભર્યા, પણ મને 15 માર્ચ સુધી કેટલા મળ્યા? 15 માર્ચ સુધી 20 જ મળ્યા, 20,000. તો આ બે રકમ છે. હવે સમજી લે કે આવ્યા 21 માર્ચે મેં બીજા 30,000 ભર્યા, 21મી માર્ચે 15 માર્ચ સુધી કેટલા ભર્યા? હવે બાકીનો સમજી લે કે આ મેં 20, બાકીના 35,000 જે છે, that 35,000 I have paid on 28 માર્ચ. મને 15 માર્ચ સુધી કેટલા મળ્યા? તો કે અહીંયા જે 20,000 છે, 21મી ડિસેમ્બરે જે 20,000 ભર્યા છે એ મળશે. એટલે અહીંયા મને જો 20 પ્લસ બીજા 20, તો અહીંયા 15મી માર્ચ સુધી મેં કેટલા ભર્યા છે? તો કે 40,000. તો આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે 60,000, એના પર મારું વ્યાજ અહીંયા આગળ આવશે. અહીંયા તમે જે વ્યાજ જે ગણ્યું that is on 15,000 की जगह पे 60,000 पे इंटरेस्ट आएगा. समझाई गયું? हेलो, यस सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? सर ओके, यहाँ पे हमने सेक्शन 234 सी डिस्कस किया. ओके, नाउ सेक्शन 234 ए बी सी हमने डिस्कस कर दिया. अभी थोड़ा सा बाकी है, बट सी आई थिंक आई शुड हैव टू स्टॉप हियर, बिकॉज़ ये थोड़ा है. वो कल सुबह में हम वापस डिस्कस करेंगे 234 सी. यहाँ से एक थोड़ा सा आधा पेज जितना बाकी है, तो दैट विल डिस्कस ऑन टुमारो मॉर्निंग. ओके, और कुछ दूसरी केस स्टडीज भी है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस ऑन टुमारो मॉर्निंग. See, right now I am concluding my lecture. Just a minute, let me stop the recording. Yes, I'll stop the recording. कल सुबह में हम tomorrow will meet at 9 o'clock in the morning.